Thank you, Mohit Prabhu, for adding that point that now I have to perform. You have done my work easy, my task easy by telling me that you are right. So I just wanted to act now. I don't know whether I have done the homework well, but I will try to serve all of you. Thank you so much for giving me the opportunity. I don't know up to what level I can match Ras Prahan Prabhu, but we must have seen in our school days that one particular day is a teacher's day, right? In the teacher's day, what we do? One of the student will become a teacher and he will try to teach, right? So this is the same teacher's day for me, what I've learned for my senior, and in their absence, I have to just repeat what I've heard from them. So basically, His Grace Vajrayari Prabhu, His Ras Prahan Prabhu, Gopi Mantri Mataji, and many devotees are there. So whatever I've learned, and the best part is whenever a student comes to the class, they have pre-work and met the teachers earlier. They know what to speak, how to speak, and up to what level to speak. So then student doesn't have to work much. So it is already instructed by the teacher. So I'll just try to follow their footsteps and try to some little for my own purification and for all of your pleasure. Try to speak on Bhagavad Gita. So once again, welcome for our weekly Bhagavad Gita discussion. And this is the book for the mankind. We must have received many gadgets and many electronic items, and always we are eager to know features and the task that, even for the mobile phones or anything, we are eager to do R&D. But certain R&D will be very costlier if you don't know the exact way of doing it. So similarly, you all must know that this is the life that we have got after many lifetimes. It is very difficult to accept this point of time, but all the kind of species that we are seeing around us, we have all been through that. Actually, we were there. And by Lord's mercy, by our attempts and by our sincere desire, we got this opportunity as a human form of life. It is very ironic that we need to tell human nowadays that at least you become human. Being human, you can see in the teacher, because so many things are happening around the world, and everywhere, everyone is just to either present themselves as a heroic personality, or they want to establish their own belief on others. But we are very fortunate that we have got this path where we can, make our life sublime by reading from the scripture which is spoken by the Lord, right? Bhagavad Gita is, so can anyone tell me that where the Bhagavad Gita was spoken? Kurukshetra, right? And which is the scripture which the Bhagavad Gita is part? Anyone from newcomer? I think no one is new, but I'm just thinking that recently started coming. So which is the scripture? Mahabharata, correct. And who wrote Mahabharata? हिंदी, या सो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस स्क्रिप्चर को पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया है, क्योंकि कोई भी बुक लेके अगर हम पढ़ेंगे तो वी विल नॉट गेट द बेनिफिट विच इज वी आर बाउंड टू गेट. मतलब हमें जो मिलना चाहिए वो अधिकृत बुक होना चाहिए और अधिकृत परंपरा होनी चाहिए. तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत समय के बाद भी, इवन आफ्टर मतलब मेनी ईयर्स, इफ समबडी आस्क्ड व्हेन वी यूज्ड टू अटेंड Vajrayari Prabhu's lecture, it was very surprising that Prabhuji simply asked that how many chapters are there in Bhagavad Gita. So someone said 21, someone said 24, someone said 16. So it's a basic thing, right? We need to know that how many chapters are there? 18 chapters. So in 18 chapters, it is divided into the different sections, and this is the first beginning of the Bhagavad Gita. So as of now, Bhagavad Gita is not yet started. अभी तक भगवद गीता एक्चुअल में शुरू नहीं हुआ है. अभी तक युद्ध व्यू का निरीक्षण चल रहा है और सब अर्जुन देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है. तो अभी तक हमने सब देखा है कि आगे अभी तक क्या क्या हुआ. अभी लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया? 23 वी डिडंट हैव अ क्लास, राइट? उसके पहले हमने डिस्कस किया था. तो क्या डिस्कस किया हमने लास्ट टाइम? अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? और अपन ऐसा रखेंगे कि हाथ उठा के बोलेंगे, मतलब जिसको पता है वो हाथ उठाएगा और फिर बोलेगा, है ना? आप लोग थोड़ा पास में आ जाएंगे ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा. मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आवाज़ दूर तक जा रहा है कि और हमेशा जब भक्त लोग संग में आते हैं ना तो एसोसिएशन का पावर होता है. तो शायद आप लोग की एनर्जी से मुझ में थोड़ी एनर्जी आ जाए और मैं कुछ बोल सकूं.
तो हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीक, जब राज प्रेम प्रभु ने क्लास लिया था तो क्या डिस्कस किया था हमने? हाँ, फिर लास्ट हमने क्या डिस्कस किया, और एक चीज हमने डिस्कस की, राज प्रभु ने बहुत अच्छे से स्टोरी बताया, शंख का स्टोरी बताया, कौंसिल। कृष्णा का कौंसिल का नाम क्या है? पंचजन्य। अर्जुन का? देवदत्त। युधिष्ठिर महाराज? बस ठीक है, ये दो याद है ना, बहुत हो गया। युधिष्ठिर महाराज का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, और सहदेव का मणिपुष्पक। तो ये मतलब बेसिक चीज। और सबसे पहला श्लोक, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है ना भगवत गीता का, आज के दिन में बहुत जरूरी है, आज के समय में, कि हमें भगवत गीता का एटलीस्ट पहला श्लोक याद हो कहीं पे भी। तो हालांकि अभी तो बहुत टाइम हो गया, शायद आपको याद नहीं हुआ, घर पे जाके बस एक पहला श्लोक याद कर लेना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवसव मामका पांडवाश्च किम कुरुते संजय। बस एक श्लोक तो अपने को याद होना ही चाहिए। बाकी बी आर चोपड़ा के महाभारत से अपने को यदा यदा धर्म से तो याद है, भले उसका इम्प्लीकेशन याद नहीं होगा पर वो श्लोक याद है ना। तो हमने अभी तक ये सब डिस्कस किया, और अभी ड्रामेटिक वे में अभी जो कृष्ण है ना, वो इस पर्टिकुलर थीम में 21 to 25 ये जो थीम है, उसमें दुनिया के कोई भी शास्त्र में, कोई भी स्क्रिप्चर्स में उस तरीके से भगवान को प्रेजेंट नहीं किया गया जिस तरीके से इसमें किया गया है। आप लोगों ने टॉपिक भी देखा होगा ग्रुप में, क्या नाम है टॉपिक का, क्या लिखा था टॉपिक में? हाँ, तो ये सोच के हमको लगता है कि अरे कैसे, मतलब एक सर्वेंट होता है, और हमारा जो मेंटालिटी है ना अभी तक का, वो कैसा है, बचपन से लेके आज तक, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर अभी तक हमें सिर्फ मास्टर बनना सिखाया है ना। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके पूरा परिवार उसको घेर लेता है, और उसको लगता है कि आई एम वन ऑफ द स्पेशल, आई एम महाराज, मैं तो कोई तो हूँ। मतलब सब लोग प्यार करते हैं ना, मैं कुछ गलत नहीं है उसमें, बट उधर से लेकर हमें तो एक एग्जाम में हमको फर्स्ट आना है, रेस में हमको फर्स्ट आना है, हम जो कपड़े पहनेंगे सबसे बेस्ट होने चाहिए, हम जो कुछ भी करें सबसे बेस्ट होना चाहिए। कभी सोचा है कि हमारे में कहाँ से आया? आप देखना, कभी भी कपड़े खरीदने जाओगे या कुछ भी चप्पल भी खरीदने जाओगे तो देयर इज अ रेंज ऑफ सीरीज, मतलब होगा, उसमें से आप कोई एक चूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो बेस्ट है, और हमारे पास जो होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है? सोचा है कभी ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम जो है ना वो भगवान के पार्ट एंड पार्शल है, और भगवान कृष्ण जो है वो बेस्ट है, तो उनका जो क्वालिटी है वो हम में आया है, और हम अपने तरीके से अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि थोड़ा सा भगवान से विमुख होकर कर रहे हैं, पर भगवान ने हमको फ्रीडम दिया है। तो ये जो पर्टिकुलर थीम है, दैट डिस्क्राइब्स एज अ कृष्णा एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एज अ सर्वेटर ऑफ हिज डिवोटी। तो 21 से लेकर 25 तक का जो ये सेक्शन है, उसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों के सेवक के रूप में प्रकट किया गया है, और इट इज एन हिस्टोरिकल इवेंट। नो स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड दैट डिस्क्राइब द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड लाइक अ सर्वेंट और चैरियट ड्राइवर। आप सोच सकते हैं कि भगवान को एक चैरियट ड्राइवर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और हर भगवत गीता की कॉपी में आपको दिखेगा कि भगवान चैरियट ड्राइवर है और अर्जुन पीछे है। जनरली जो सर्वेंट रहते हैं वो आगे रहते हैं और मास्टर पीछे रहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सबके मास्टर हैं, वो चैरियट ड्राइवर है। तो ये बताता है कि हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, जो हिंदुत्व है, जो भगवान की मैग्नेनिमिटी है, जो भगवान का उदार हृदय है, वो कितना विशाल है। और वो भगवान क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और जब ये परीक्षित महाराज ने जब ये देखा ना, तो परीक्षित महाराज अपने राज्य में घूमते हैं, और घूमते वक्त वो विचार करते हैं, जब उनको पता चला ना कि मेरे परदाता थे, अब परीक्षित महाराज कौन है? अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र। तो परीक्षित महाराज के लिए अर्जुन उसके परदादा हुए। तो जब ये सुनते हैं ना तो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं कि कैसे भगवान जो कृष्ण है वो कैसे मेरे परदाता के सेवक बन के उन्होंने कैसे कार्य किया। हालांकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और पूरा भागवतम वो सुन रहे हैं, बट वो सरप्राइज हो जाते हैं और अचंभित हो जाते हैं और मंद मंद मुस्काते हैं कि वाह क्या भगवान है। मतलब कोई भगवान ऐसा हो सकता है कि जो अपने भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि भगवान ने कैसे कैसे क्या क्या सेवा किया। तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है भागवतम में,
जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के 16वें चैप्टर का 16वां श्लोक है, ठीक है। सारथ्या पार्षदस्सेवन साख्य दौत्यो वीरासना अनुगमन स्तवन प्रमाण स्निग्धेषु पांडेषु जगतं प्रणितिं च विष्णुर भक्तिम करोति नृपति चरणारविंदम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज? सारथ्यम, सारथ्यम मतलब भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने। और पता है भगवान ने सारथी कैसे बने वो आपको पता होगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास मांगने जाते हैं, तो जब दुर्योधन मांग लेते हैं पूरी नारायणी सेना को, और अर्जुन क्या कहते हैं? मुझे सिर्फ आप चाहिए। और सारथी जो युद्ध होता है ना, उसमें सारथी सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि उसको पता होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को भी आप बिठा दो, क्योंकि जिस तरीके से उसका जो योद्धा है वो जिस तरीके से लड़ाई कर रहा है, उस प्रकार से उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन से डायरेक्शन से कहाँ जाना है। और वहां पे आपको आवाज सुनाई नहीं देता है और घमासान युद्ध होता है। मतलब आप एक दूसरे के साथ में बोलेंगे ना, खुद का आवाज खुद को भी नहीं सुनाई देगा, तो इतना भयंकर युद्ध होता है। तो उसमें भगवान वो क्या बोल रहे हैं कि सारथ्य पार्षद, पार्षद मतलब भगवान ने अपने सेवक के सेवक बनना स्वीकार किया। सेवनम, सेवनम मतलब क्या? अभी राजसूय यज्ञ जब हुआ तो राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने क्या क्या जानते हैं? राजसूय यज्ञ में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के साथ रहकर, वहां पर जो अतिथि आ रहे थे, जो एस्टीम सेजेस थे, लॉर्ड कृष्णा वाज हेल्पिंग युधिष्ठिर महाराज टू वॉश देयर फीट। भगवान पानी डालते थे और युधिष्ठिर महाराज पैर धोते थे। और उतना ही नहीं, जब सबने प्रसाद ले लिया तो प्रसाद लेकर भक्तों के जूठे पत्तल भगवान कृष्ण ने उठाए। तो ये सब परीक्षित महाराज याद कर रहे हैं और याद करके आनंदित भी हो रहे हैं, और ही इज फील्ड विद द ग्रेटिट्यूड कि क्या भगवान है हमारे। फिर आगे क्या कहते हैं? दौत्य, दौत्य मतलब मैसेंजर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे एक प्यून होते थे, तो आप कृष्णा ने एक प्यून का पोजीशन लिया। आपको पता है ना, वो शांति दूत बन के जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज जब भेजते हैं तो उनका मैसेज लेकर भगवान जाते हैं हस्तिनापुर में। अभी ये प्यून का काम है, एक मैसेज का चिट्ठी लेके जाना और करना। ये किसने किया? भगवान ने किया। सारथ्य पार्षद सेवन सौख्य दौत्य वीरासना अनुगमन स्तवन प्रमाण। वीरासना मतलब क्या? कि कृष्णा हैज बिकम अ बेड एंड अ पिलो। मतलब भगवान अर्जुन के पलंग और तकिया बने। कैसे? जब अर्जुन युद्ध में थक जाते थे तो कृष्ण ऐसे बैठते थे और अर्जुन उनके लैप में सर रख के सो जाते थे और भगवान ऐसे बैठे रहते थे। तो ये हमारे भगवान है। और उतना ही नहीं, युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से बड़े थे। तो अभी मैं जो सेक्शन पढ़ रहा हूं महाभारत में, उसमें भगवान की द्वारका लीला बताई गई है कि भगवान का डेली का शेड्यूल क्या है। वो अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा कि ये भगवान को करने की आवश्यकता है क्या। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, तभी से लेके उनका पूरा दिनचर्या दिया हुआ है कि भगवान क्या क्या करते थे। उसमें आपके फोर फादर को ऑब्लेशंस देना आ गया, सूर्य नारायण को अर्घ देना आ गया, अपने बड़ों के पैर पड़ना आ गया, सभी सिटीजन को ग्रीट करना आ गया, ब्राह्मणों को दान देना आ गया, गायत्री करना आ गया, जप करना आ गया, मेडिटेशन करना आ गया, सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने एग्जाम्पल से सेट करते हैं। भगवान होकर भी ये सब कर रहे हैं। तो यहां पर वो क्या करते हैं? युधिष्ठिर महाराज से जब मिलते थे तो युधिष्ठिर, अर्जुन और कृष्ण लगभग सेम एज के थे, और युधिष्ठिर महाराज जो थे वो कृष्ण से बड़े थे। तो जब भगवान युधिष्ठिर महाराज को मिलते थे तो युधिष्ठिर महाराज के भगवान पैर पड़ते थे और अर्जुन को गले लगाते थे और नकुल सहदेव को आशीर्वाद देते थे। अब ये जब परीक्षित महाराज सोच रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे वो सखा बन सकते हैं। आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी ही बिकम द फ्रेंड्स ऑफ माय ग्रैंडफादर। वो कैसे, मतलब कैसे कोई दूत बन सकता है, कैसे कोई सारथी बन सकता है। अभी सारथी देखोगे ना, इट इज लाइक लोअर पोजीशन, मतलब एक तरीके से देखोगे। हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे महारथी भी सारथी का पोजीशन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये जब सोच रहे हैं कि कैसा ऐसे हो सकता है, भगवान इतने कृपालु ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसका जो उत्तर है ना वो थर्ड लाइन में देते हैं। वो क्या बोलते हैं? स्निग्धेषु पांडवेषु। वो क्या बोलते हैं? स्निग्धेषु। स्निग्धेषु मतलब मेलिएबल। मेलिएबल मतलब जो परिस्थिति, वातावरण और इंटरेक्शंस के बेसिस पे अपने आप को फोल्ड कर ले, अपने आप को
मोड ले, उसको मेलिएबल बोलते हैं। अभी आप लोग जो डीटी वर्शिप करते हैं उसमें जो एक टैग होता है ग्लू टैग, तो ग्लू टैग क्या होता है, आपको जहां लगाना है, जैसे लगाना है, जो फूड में मोल्ड करना है वो मोल्ड हो जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, स्निग्धेषु पांडेषु जगतम प्रणीतम च विष्णुर, वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, क्यों दास से बने, क्यों सखा बने, क्यों पत्तल उठाए, क्यों जूठन उठाया, ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्निग्धेषु पांडेषु, जो पांडु थे ना वो इतने स्निग्ध थे, इतने मेलिएबल थे कि उनके जीवन का सिर्फ एक ही गोल था कि कैसे हम भगवान को, कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो सब हम करेंगे, है ना। अभी हमारे लाइफ में अगर कुछ होता है तो अनफॉर्चुनेटली हम क्या होते हैं, भले हम भगवान की उतनी भक्ति शायद नहीं भी करते होते, तो क्या होता है कभी कभी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं, मैं अपना बता रहा हूं, कहीं ना कहीं व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अस, मतलब नॉट गोइंग टू अकॉर्डिंग आवर वे, तो क्या होता है कहीं ना कहीं, यार मैंने क्या बिगाड़ा यार किसी का, मतलब मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैं किसी का गलत करता भी नहीं हूं, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। और अभी तो मैंने यार वो भगवत गीता की क्लासेस भी जाना शुरू कर दिया है, हर सैटरडे विदाउट फेल जाता हूं, सब काम को साइड में रख देता हूं, फिर भी ये साला तकलीफ मेरे पे क्यों आता है। मतलब भगवान के पास जाएंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए ना, तो ये सब क्यों हो रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि स्निग्धेषु पांडेषु, अभी ये जो प्रणितिम च विष्णु, ये भगवान विष्णु है, लेकिन पांडव इतने स्निग्ध है कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, दे वर ऑलवेज ग्रेटफुल। मतलब कभी भगवान के प्रति द्वेष या भगवान के अस्तित्व को नकारा नहीं। हम लोग का ड्यू टू द मॉडर्न प्रोपेगेंडा ऑफ द मीडिया और सोशल मीडिया और जहां पे भी, अभी एक ऐसा आइडेंटिटी बनाने के पीछे पड़े हैं सब कि जो गॉडलेस सोसाइटी हो, मतलब भगवान है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, है ना, नोइंगली अननोइंगली हम उसके ही पार्ट हैं। वैसा ही हो रहा है ना हर जगह पे, आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं और कहीं पे किसी को ये पता चला कि आप बहुत धर्मिष्ठ है, तो आपको ऐसे एलिनेट करेंगे कि जैसे आप कोई मिल गया का वो जादू है ना। आपको लगेगा कि मतलब यार, मतलब मेरे में दोष क्या है, मैं तो अच्छी चीजें कर रहा हूं, पर वो उसमें फिट नहीं होता है ना। और अपने को फिर डाउट आने लगता है कि व्हाट एवर आई एम डूइंग, एम आई डूइंग इट राइट, क्या मैं सही कर रहा हूं, अरे इससे तो पहले अच्छा था, भक्ति में आने से पहले ज्यादा अच्छा था। भक्ति करने से, भगवान को याद करने से, भगवान नाम करने से साला तकलीफ बढ़ गई अभी उल्टा। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसी वजह से भगवान ने किया, क्योंकि पांडव जो थे वो भगवान के भक्त थे, और भगवान सब कुछ देख सकते हैं पर अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। और ये भगवान और भक्त का ना बहुत अनोखा संबंध है, वो सिर्फ भगवान जानते हैं और भक्त जानते हैं। भक्तिम करोति नृपति चरणारविंदम। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि ऐसे भगवान की जय हो और ऐसे भक्तों की जय हो, और ऐसे भगवान के चरण को मैं वंदन करता हूं और उनकी भक्ति मुझे करनी है। तो यहां से 21 जो वर्ष है वो 21 से लेके 25 तक हम पूरा साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा एक ही सेक्शन है। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। टेक्स्ट 21 फर्स्ट चैप्टर, भगवत गीता है कॉपी अपने पास, नहीं तो मोबाइल में निकाल लो आप। पढ़े। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धो कामान् अवस्थितान्। किर्मया सुहा योद्धव्यम् अस्मिन् दानास्तमुद्यमे। Who can read translation? You can read? Yeah. Arjun said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms.
अभी इसके आगे जो कुछ भी, हाँ अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, अभी द वॉर इज अबाउट टू बिगिन, है ना। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अभी मेरा जो रथ है, किसको कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, अब क्या करो, मेरा जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ, भगवान को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। योस्तमाना विनेक्षेहम य एतेत्र समागता धातराष्ट्रा दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। योस्तमाना अवेक्षेहम य एतेत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्ष। वो क्या बोल रहे हैं, लेट मी सी दोस हु हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। मतलब वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन धृतराष्ट्र की तरफ, मतलब दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए हैं और कौन कौन हमारे साइड से लड़ने आए हैं। ए संजय उवाच, अभी ये संजय कौन है, तो ये भगवत गीता चल रहा है ना, उसमें अभी अर्जुन बोल रहे हैं, तो अभी संजय कहां से आ गए बीच में, संजय कौन है। हाँ करेक्ट, उनको क्या था, व्यासदेव का वरदान था। अपन जो लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, तो वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे उनको पूरा युद्ध भूमि में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा दिखता था, और क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं पाते थे तो उनको, और धृतराष्ट्र युद्ध में नहीं थे तो वो उनको एक्सप्लेन करते थे कि अभी क्या हो रहा है। इसीलिए पहला पहला जो श्लोक है ना वो वही पूछते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं पहला श्लोक, किसको पूछते हैं, संजय को पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है और मेरे जो पुत्र हैं और पांडु के पुत्र वो क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी संजय क्या बोल रहे हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशे न भारत, रिपीट, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the enemies of both the parties. अभी लास्ट टाइम बताया राजपारायण प्रभु ने, ये जो चैरियट है वो बहुत स्पेशल चैरियट है। किसने दिया था, इंद्र ने दिया था, अग्निदेव ने दिया था। तो वो चैरियट को भगवान अभी क्या करते हैं, दोनों आर्मी के बीच में लेकर जाकर खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसका 25th वर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए कि भगवान कृष्ण का जीनियस क्या है, मतलब भगवान कितने, मतलब अर्जुन की मनोदशा को जानते हैं। अभी वो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अभी नाउ कृष्णा वांट्स अर्जुन टू बिकम वीक, लिटिल वीक। तो क्या होगा, उसके अंदर जो अटैचमेंट है ना वो सारा भगवान को निकालना है। मतलब जो अनवांटेड अटैचमेंट है, अनवांटेड जो प्राइड है, अनवांटेड जो दूसरों के प्रति घृणा है, वो सारा भगवान निकालेंगे। हालांकि अर्जुन को कोई घृणा नहीं थी, बट वो कहता है ना कि दुष्ट बुद्धि जो दुर्योधन है उसको, वो किस किस को लेकर आया है लड़ने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 25। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेशा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेता स्तन्मवेता कुरुनिति। In the presence of Bhishma and Drona and all other chieftain of the world, the Lord said, "Just behold, Partha, all the Kurus assembled here." अब भगवान ने क्या किया, भगवान चाहते थे तो वो उसका जो रथ है अर्जुन का, वो दुर्योधन के सामने लेके जाके खड़ा कर देते थे, क्योंकि दुर्योधन ने ही किया ना, मतलब उसको ही युद्ध करना था। भगवान शांति दूत बनकर गए थे, समझाया था, विराट रूप भी दिखाया था, पर नहीं समझा। यहां तक भी बता दिया था कि सिर्फ क्या चाहिए, 5 गांव दे दो बस, बिकॉज क्षत्रिय का धर्म है कि उनको रूल करना। और बोला कि 5 गांव दे दो, हम लोग उसमें संतुष्टि मानेंगे और तुम अपना रखो, तुमको जो कुछ भी है। उसने क्या बोला, नहीं दूंगा, उतना भी नहीं दूंगा जितना सोई की नुक पे रख सको। तो भगवान बोला ठीक है। और बहुत सारी लंबी कथा है, उतने में नहीं जाएंगे, हम इस पे फोकस करेंगे। फिर भगवान को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भगवान विराट रूप बताते हैं और फिर भगवान आ जाते हैं। तो वो नहीं माने, तो भगवान जो रथ है वो सेंटर में लेके अर्जुन दुर्योधन के सामने खड़ा कर सकते थे, लेकिन भगवान इंटेलिजेंट, भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो रथ है वो भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने लाके खड़ा किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को बताना चाहते थे कि देखो कौन कौन आया है तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए। अभी भीष्मदेव कौन है, उनके परदादा है, मतलब पितामह है, उनकी गोद में अर्जुन खेले हैं,
और अर्जुन सबसे प्रिय पौत्र है उनके। और दूसरी बाजू कौन है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य है और द्रोणाचार्य ने सबको सिखाया, कौरवों को सिखाया। बताया ना राजपारायण प्रभु ने लास्ट टाइम कि उन्होंने दुष्टद्युम्न को भी सिखाया कि जो उनको मारने के लिए जिसका जन्म हुआ था उसको भी सिखाया। तो भगवान ने वो रथ को वहां पे जाके खड़ा कर दिया। अब अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अब तुम देखो कि यहाँ पर कौन कौन तुमसे लड़ने आया है। ताकि भगवान अभी क्या कर रहे हैं, भगवान जो भगवत गीता अभी, नाउ कृष्णा वांट टू रिवील द भगवत गीता, द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी टू कम टिल द टाइम वी हैव दिस अर्थ, टिल द टाइम एनिलेशन। ये हमेशा चलता रहेगा, ऐसा ज्ञान दिया भगवान ने। तो वो अभी बोलना है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, वो पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे बोला जाएगा और लोग कैसे इसको रिलेट कर पाएंगे। अभी सीन क्या है, अर्जुन अभी ड्युअलिटी में है। अभी देखिएगा ना तो अर्जुन अभी वीक हो जाएगा। जैसे ही हम कुछ कर्तव्य करने लगते हैं तो हमारे कर्तव्य में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण हम दुर्बल बन जाते हैं और अपने कार्य में अपना 100% नहीं दे सकते। तो वैसे थके हुए, हारे हुए, और बाकी लोगों के लिए भी, ऐसा नहीं कि खाली थके हुए हारे लोगों के लिए भगवत गीता है, भगवत गीता सबके लिए है। बट भगवत गीता इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि चाहे आप कोई भी क्षेत्र में हो, भगवत गीता विल बी ऑलवेज रिलेवेंट, हर चैप्टर। तो भगवान ने वो बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया। अभी भगवान अर्जुन को चाहते हैं कि वो उसके अंदर की जो आसक्ति है, उसके अंदर का जो अपने अपने लोगों के प्रति जो अटैचमेंट है, भगवान उसको निकालना चाहते हैं। अभी भगवान के लिए वो अर्जुन के लिए वो कैसे युद्ध करेगा सबके साथ। तो ये इसका थीम है जहां पर भगवान को एज अ चैरियट ड्राइवर प्रेजेंट किया गया है 21 टू 25। अभी जैसे जैसे भगवत गीता आगे बढ़ेगा ना तो ऐसे ऐसे क्या होगा, भगवत गीता विल बिकम मोर फिलोसॉफिकल एंड टेक्निकल, है ना। तो उसके पहले क्योंकि ये थीम बता रहा है हमको कि भगवान को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया, तो हम थोड़ा सा युद्ध की तरफ जाएंगे और युद्ध में देखेंगे कि युद्ध में एक्चुअली क्या हुआ और भगवान कृष्ण कैसे अपने भक्तों की सेवा करते हैं, क्योंकि थीम वही है। तो हम थोड़ा सा महाभारत की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि 11वें दिन पे, 12वें दिन पे, 13वें दिन पे और 14वें दिन पे क्या क्या हुआ और भगवान ने कैसे ब्यूटीफुली, हाउ कृष्णा हैज वेरी नाइसली ऑर्केस्ट्रेटेड द एंटायर वॉर। अभी भगवान ऐसे एक व्यक्ति हैं, ए सुपर जीनियस, कि जिन्होंने पूरे युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन हर दिन पे भगवान ने ऐसे ऐसे मिरेकल किए हैं विदाउट एनी वेपन। कृष्णा हैज प्रोटेक्टेड हिज डिवोटी। आप देखेंगे आगे कैसे कैसे भगवान ने रक्षा की है। तो अभी 11वां दिन है युद्ध का। 11वां दिन पे हो क्या रहा है, 11वां दिन पे क्या हुआ, मेरे ख्याल 10वें दिन पे या 11वें दिन पे सबसे बड़े जो महारथी थे जिसके बल पे दुर्योधन ने युद्ध को छेड़ा था, वो कौन थे? भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह, आपने लास्ट टाइम सुना भीष्म पितामह का था जो राजपारायण प्रभु ने बताया। अब भीष्म पितामह की अकेले की इतनी शक्ति थी कि वो अगर चाहे तो वो सिर्फ अकेले, और यहां पे 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, वो सारे मिलकर भी अगर भीष्म पितामह से युद्ध करते ना, वो अकेले सबको परास्त कर सकते थे। इतना स्ट्रेंथ था, उतना पावर था उनमें। बट आउट ऑफ हिज ओन लविंग अफेक्शन फॉर पांडवास, एंड ही न्यू दैट व्हाट पांडवास डूइंग, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द धर्मा। धर्म की स्थापना के लिए वो ऑपोजिट साइड में रहे, और पूरी कथा डिटेल में है, बट वो क्यों अधर्म के साइड पे थे। बट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो अपनी स्वेच्छा से उन्होंने ही बताया कि मुझे कैसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि किसी में ताकत नहीं थी उनको परास्त करने की, नॉट इवन अर्जुन। तो उन्होंने खुद ने बताया, श्रीखंडी को बताया ना कि श्रीखंडी कैसे अम्बा को इनकारनेट हुआ, और फिर कैसे वो जब सामने आते तो भीष्म पितामह अपने हथियार छोड़ देते हैं और फिर अर्जुन उनको परास्त करते हैं। अब भीष्म पितामह गिर गए। अब भीष्म पितामह गिर गए तो पूरे कौरव सेना में जो ना हाहाकार मच गया कि अरे, मतलब ही वॉज द कमांडर इन चीफ। अब वो कमांडर चीफ अगर गिर गए तो पूरी सेना का क्या दशा होगा। तो सारे लोग दुख में डूब गए, लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा ज्यादा खुश हो गया। कौन? कर्ण भी, पर उसके पहले दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन क्या था, दुर्योधन को पता था कि ये कितना भी बोले पर इनके हृदय में छुपा हुआ जो पांडवों का प्रेम है ना, वो जाएगा नहीं, और उसके कारण वो है ना कभी अपने फुल ऑन में कभी युद्ध नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने किया था एक, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि पांडवों का हित हो। तो वो थोड़ा सा खुश हो गया दुर्योधन। तो फिर उसने अपने मित्र से बात किया, कर्ण से, और कर्ण ने भी भाव लिया था कि मैं युद्ध में तब तक नहीं आऊंगा जब तक भीष्म पितामह है ना। तो कर्ण को पूछता है कि नाउ whom you think who should become a commander in chief?
तो कर्ण क्या बोलता है, लेट द द्रोणाचार्य बिकम कमांडर इन चीफ बिकॉज ही इज द सुप्रीम, ही इज द एल्डेस्ट वन, ही इज आवर गुरु ऑल्सो एंड एवरीबडी विल फॉलो वॉट एवर ही सेज, तो उसको आप सेनापति बना दो। तो वो दुर्योधन जाता है और उनको बोलता है कि आप हमारे सेनापति, आप ये स्वीकार करो। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं, ही वॉज ऑनर्ड, मतलब उनको लगा कि मतलब उनको बहुत सारा मान सम्मान दिया दुर्योधन ने, तो वो एकदम ऑब्लाइज हो गए दुर्योधन के प्रति और दुर्योधन को पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब तू ऑनर्ड मी सो मच। और ऐसा बहुत बार होता है। अभी पहले भी हम लोग है ना, हम भी कार्य भी करते हैं, पहले भी सेवा भी करते हैं, बट स्पेसिफिकली जब हमें इंचार्ज बना दिया जाता है ना, तो हम अलग ताव में आ जाते हैं, है ना। मतलब कोई भी सेक्शन में, चाहे वो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन हो या कहीं पे भी, हमारे अंदर एक ऐसा, क्योंकि हमको हमारे अस्तित्व को प्रूव करना है ना। मतलब सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा, अनफॉर्चुनेटली वी वांट टू प्रूव दैट वी कैन बिकम अ मास्टर इवन इन फ्रंट ऑफ कृष्णा to a limited tiny capacity, and that is the reason why the entire world has been created. तो हमारे अंदर वो है। तो जब भी हमको इंचार्ज बना दिया ना, पहले भी हम सेवा करेंगे, लेकिन इंचार्ज बनाने के बाद वो अलग से एक जोश आ जाता है। किसी भी क्षेत्र में, कोई भी टीम में आपको इंचार्ज बना दिया ना, मतलब आप ज्यादा सेवा करेंगे। तो अभी वही हाल द्रोणाचार्य का हुआ। द्रोणाचार्य पहले लड़ते थे, लेकिन अभी उनको इंचार्ज बना दिया, वो सेनापति बन गए, तो अभी वो डबल फोर्स में पावर से लड़ते थे। तो उन्होंने पूछा दुर्योधन को कि अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो दुर्योधन ने बोला कि आप है ना युधिष्ठिर को, यू कैप्चर्ड युधिष्ठिर। तो द्रोणाचार्य सर कैप्चर्ड, इफ यू जस्ट से आई कैन किल युधिष्ठिर। तो नाउ लुक एट द क्रुकेड मेंटालिटी ऑफ दुर्योधन, व्हाट दुर्योधन हैज सेड, नो 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 नो, डोंट किल युधिष्ठिर, बिकॉज इफ यू किल युधिष्ठिर देन द रिमेनिंग पांडवास विल नॉट स्पेयर अस। तो आप क्या करो, उनको बंदी बनाकर लेकर आओ, और फिर क्या करूंगा मैं, आई विल अगेन मेक हिम प्ले डाइस and then I'll again send him to forest for again 12 years. तो द्रोणाचार्य बोलते हैं, मतलब अपने इधर के लैंग्वेज में बोलेंगे तो मत, तेरे जैसा कमीना मैंने देखा नहीं आज तक। है ना, मतलब कितना क्रुकेड है, मतलब उसके अंदर इतना कूटनीति भर भर के पड़ा हुआ है कि वो बोलता है कि आप उसको कैप्चर करके लेके आओ, फिर से मैं डाइस खिलाने के उसको मजबूर करूंगा और फिर से वन भेज दूंगा। उसका प्लान यही था कि वो उसको लाने का, अज्ञातवास में ढूंढने का, फिर वापस से भेज देने का 12 में, बिकॉज इनकॉग्निटो में जब रहते हैं 13 ईयर्स में, इफ यू फाइंड देम देन अगेन 12 ईयर्स का शुरू हो जाएगा। तो उसने ऐसा बोला, तो बोला नहीं नहीं, आप सिर्फ उनको कैप्चर करके लेके आओ। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि देखो, मैं युधिष्ठिर को कैप्चर तब तक नहीं कर सकता जब तक अर्जुन है। अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को कैप्चर करना नामुमकिन है। तुम अर्जुन को हटा दो, फिर मैं युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर कर दूंगा। अभी दुर्योधन ने क्या किया, जैसे ही ये द्रोणाचार्य ने बोला ना, तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने सब जगह जाके डंडोरा पीट दिया। मतलब द्रोणाचार्य हैड टेकन अ वाव दैट ही विल कैप्चर युधिष्ठिर महाराज, सब जगह जाके बोल दिया। नाउ द्रोणाचार्य इज फीलिंग प्रेशराइज, अभी नाउ ही हैज टू परफॉर्म। अभी इसने बोल दिया ना सब जगह जाके द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को कैप्चर करने वाले, तो सब जगह ढोल पीट दिया। तो अभी द्रोणाचार्य पे प्रेशर आ गया, अभी युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे वो गेम करता था। और सबसे बड़ा पॉलिटिशियन ना दुर्योधन, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। आप देखेंगे ना, वो महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या उसके दिमाग में उसका इतना शार्प और इतना शूर था ना वो, उसको पता चल जाता था कि कौन से व्यक्ति को कैसे अपने पारे में करना है। उसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, मौके का फायदा कैसे उठाना है, दुर्योधन न्यू। सबसे बेस्ट एग्जांपल इस कर्ण, जिस तरीके के कर्ण को उसने अपने पारे में किया है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे उसको लिया। क्योंकि यहां पे क्या शूद्र पुत्र करके सब लोग ने उसका इंसल्ट किया, एक्चुअली में ही वो तो शूद्र। और जिस तरीके से हमारा जो सोसाइटी, जिस तरीके से हम बताते हैं ना कर्ण को बहुत बड़ा योद्धा, दानवीर, और बहुत उसके साथ अन्याय हुआ, कहीं ना कहीं हम सबके हृदय में भी, आफ्टर सीइंग द महाभारत, हम सबके हृदय में भी कर्ण हीरो है। अरे उसके साथ बहुत इंजस्टिस हुआ, वो व्हील का चेयर निकाल रहा था तब उसको मारा, ऐसा कैसे कर सकते हैं, नीति के विरुद्ध है। लेकिन बिलीव मी, आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, या गोविंद प्रभु का एक बुक भी है कर्णा ऑन ट्रायल, गोविंद प्रभु वन ऑफ द सीनियर ब्रह्मचारी इन राधा गोपीनाथ मंदिर, उनके बुक लिखा है। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना, तो आपकी उसकी जो नीचता थी ना, वो आपको पता चलेगी कि उसने द्रौपदी के बारे में क्या क्या बोला है और वो कैसा व्यक्ति था। और बहुत सारी स्टोरी, वो दान भी क्यों देता था, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। उधर जाऊंगा तो अपना सेक्शन कवर नहीं होगा। तो वो क्या होता है कि उसको फिर यहां पर कैप्चर करने की बात की, उसने सब जगह ढोल पीट दिया। अभी ये बात युधिष्ठिर महाराज को पता चली। युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला, युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अर्जुन तुम्हें पता है कि अब द्रोणाचार्य ने ऐसा वाव ले लिया है,
अर्जुन बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, इट इज अबोमिनेबल फॉर मी टू किल माई गुरु, है ना, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए बहुत निंदनीय है अगर मेरे होते हुए आपको कोई कैप्चर कर ले, क्योंकि आप किंग है। तो आप बेफिक्र रहिए, मेरे जब तक मैं जीवित हूं, चाहे आसमान टूट के फट जाए या धरती फट जाए, मेरे जिंदा रहते हुए आपको कोई कैप्चर नहीं कर सकता। तो ये युधिष्ठिर महाराज को आश्वासन दिया। और अब यहां से जो 11वां दिन जब हुआ, उनको शुरू हुआ, वहां से वो युद्ध हुआ और घमासान युद्ध हुआ, और द्रोणाचार्य अपने फुल फोर्स में थे, और क्योंकि अभी वो इंचार्ज है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उस समय 11वें दिन पे सबसे पहले 11वें दिन पे क्या होता है, अभिमन्यु जो होता है ना, अभिमन्यु का फाइटिंग होता है पौरवा से। पौरवा जो था, एक जो कौरव थे उसमें से बहुत बड़ा एक महान योद्धा था, उसका युद्ध होता है अभिमन्यु से, और बहुत जोरदार युद्ध होता है। और थोड़ा युद्ध जब चलता है तो उसके बाद अभिमन्यु का जैसे मैंने बताया ना, कर्ण के बारे में तो एक मिसकंसेप्शन है, वैसे ही अभिमन्यु के बारे में भी हम जब भी देखते हैं, हर एक सीरियल में जब भी दिखाया है, उसको एक बहुत ही निर्बल, एक हेल्पलेस, होपलेस तरीके का दिखाया है ना, ऐसा प्रेजेंट किया जाता है। बट अभिमन्यु वॉज नॉट लाइक दैट। अभिमन्यु वॉज अ फिरोशियस वॉरियर। और जानते हैं उसके गुरु कौन थे? कृष्णा ने उसको सब सिखाया था, तो वो कृष्ण के शिष्य हैं। तो ऐसे ही, और उन्होंने अपनी माता की कोख में सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेजना है, उतने पावरफुल थे। तो इसमें जब फाइट होता है, तो ये फाइट में जो पौरव होता है, उसका जो बो होता है वो अभिमन्यु तोड़ देते हैं, और फिर उसके पौरव जब होते हैं यहाँ पे, तो वो फाइट करते करते उसका बो तोड़ देते हैं, और वो बो लेने के लिए वापस पौरवा जो है वो रथ पे जाता है, और ये रथ पे अभिमन्यु जाता है, उसको बालों से पकड़ता है, हवा में स्विंग करता है और उसको फेंक देता है। 16 ईयर ओल्ड बॉय अभिमन्यु, उसका ऐसा पावर था। और ये जब कौन दिखता है? ये दिखता है जयद्रथ। जयद्रथ कौन होता है? बहुत सारे नाम आएंगे, अब यू मे नॉट बी एबल टू रिलेट, बट ये सारे योद्धा हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जयद्रथ आता है, वो देखता है कि मेरे फ्रेंड का इतना इंसल्ट किया, तो वो अभिमन्यु के साथ लड़ने आता है, और अभिमन्यु जयद्रथ के साथ लड़ता है। अभिमन्यु लड़ने के बाद उसके पास जो शील्ड होता है ना, वो शील्ड से क्या करता है, जब अभिमन्यु शील्ड से मारता है जयद्रथ को, तो उसकी तलवार भी टूट जाती है और उसका शील्ड भी टूट जाता है। और उसके पीछे, जयद्रथ को मारने के पीछे, वो वापस अपने रथ पे जाता है, और वापस अपने रथ पे जाता है तो अभिमन्यु उसके पीछे जाता है और उसके साथ फाइटिंग करता है। और जब वो देखता है तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे जब अभिमन्यु चला जाता है ना, तो वहां पर बहुत सारे कौरव के सैनिक आ जाते हैं, जब अभिमन्यु लड़ रहा होता है जयद्रथ के साथ, और वो सबसे लड़ता है। फिर उसमें क्या होता है, एक शाल्य होते हैं। शाल्य जो है ना, शाल्य है वो कौन है? शाल्य एक्चुअली में जब आ रहे हैं ना, जब युद्ध की घोषणा हो गई कि अभी युद्ध होने वाला है, तो ओरिजिनली शाल्य वाज अबाउट टू फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ पांडवास। उनके दूर के मामा ऐसा कुछ लगते हैं, तो वो आने वाले होते हैं। तो बीच में दुर्योधन क्या करता है, और वो बहुत शक्तिशाली होते हैं शाल्य। तो दुर्योधन क्या करता है, बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेट मेंटालिटी, वो क्या करता है, उसका स्वागत करता है। और शाल्य को क्या लगता है कि ये सारा जो स्वागत है वो युधिष्ठिर महाराज ने अरेंज किया है, तो देन ही एक्सेप्ट हिज हॉस्पिटैलिटी, उसके मेहमान बन जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, पूरा पार्टी वार्टी करते हैं आते वक्त। तो बाद में पता चलता है कि ये दुर्योधन ने अरेंज किया हुआ है, ये युधिष्ठिर महाराज की तरफ से नहीं है। अब एक नीति है, एक नियम है, जिसका भी नमक खाया ना, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अभी इस तरीके से दुर्योधन ने उसको फांस लिया, इसलिए न चाहते हुए भी शाल्य को युद्ध करना पड़ा कौरवों की तरफ से। हालांकि ये सब उसके भांजे थे पांडव, उनके तरफ से युद्ध करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि मतलब ये मेरे भांजे हैं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो करते हैं। उसी मतलब एक धर्म की बात आती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अभी उन्होंने कमिट कर दिया तो ही विल फाइट वेरी फिरोशियसली, मतलब वो एनिमी के जैसा ही फाइट करेंगे। तो वो वहां पर आते हैं और शाल्य युद्ध करते हैं अभिमन्यु के साथ, और अभिमन्यु के साथ युद्ध करते हैं। अभिमन्यु को साथ युद्ध करते करते इतना घमासान युद्ध करता है कि शाल्य को पूरे परास्त कर देते हैं, और वो इस तरीके से अभिमन्यु उनको मारते हैं कि उनका बो टूट जाता है। बो टूटने के बाद उसका पूरा रथ पे हमला करते हैं, और उसके बाद उसके पास क्या आता है, गदा आता है। अब शाल्य ना गदा लेते हैं, और गदा लेकर अभिमन्यु भी गदा लेते हैं। तो जब गदा की बात आती है ना, तो भीमा आ जाते हैं। भीम बोलते हैं अभी तू रुक जा, अभी
गदा जो है वो मेरा अस्त्र है, तो यू मे नॉट बी एबल टू फाइट विद साल्य विद गदा। और जो युद्ध होता है भीम का और साल्य का, घमासान युद्ध होता है, और उसके अंदर भीमा बीट द साल्य, ब्लैक एंड ब्राउन एंड ब्रून एंड रेड, जो भी आप बोलो, इतनी बुरी तरह से उसको पीटते हैं। एवरीवेयर इन द एंटायर बॉडी ही वॉज वुंडेड, ब्लीडिंग फ्रॉम एंटायर बॉडी, एंड ही जस्ट कोलैप्स। और उसके बाद उसके सैनिक उसको उठाकर लेके जाना पड़ता है, वैसी हालत हो जाती है साल्य की। और उस समय पे यहाँ पर साल्य और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, उसके बाद साल्य और भीम का युद्ध हुआ, और उस समय उस डे पर उन्होंने क्या बोला था कि मेरे को युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर करना है। पर यहाँ पर द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य क्या करते हैं, द्रोणाचार्य आके युधिष्ठिर महाराज, उनका तो एक ही प्लान था कि युधिष्ठिर महाराज को कैसे भी करके कैप्चर करना है। तो वो आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर नहीं जाते हैं, बट बीच में कौन आता है, अर्जुन। और अर्जुन कैसे भी करके युधिष्ठिर महाराज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से 11वां दिन जो है ना वो एंड होता है। अभी 11वां दिन एंड होता है, 11वां दिन के एंड पे रात पे दुर्योधन जो है, सुबह क्या किया था उसने, द्रोणाचार्य को कमांडर इन चीफ बनाया था, अभी उनको टॉन्ट मारता है, बोलता है अरे तुम काहे के कमांडर इन चीफ हो। देखा, मतलब उसका मतलब क्या था, उसको बना के युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर करना। वो नहीं कर पाए तो अभी उनको टॉन्ट मार रहा है, कह रहे तुम इतना भी नहीं कर सके। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आई टोल्ड यू दैट टिल द टाइम अर्जुन इज देयर युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर नहीं कर सकते। तो वो जब डिस्कशन चल रहा होता है, उसमें क्या होता है, समसप्तका करके एक बड़ा सोल्जर का ट्रूप होता है पूरा। वो लोग क्या होते हैं, वो लोग 10,000 होते हैं, और वो 10,000 से 10,000 जो होते हैं उनको अर्जुन से बदला लेना होता है। आवाज क्यों आ रहा है, थोड़ा सा घुमा देंगे तो शायद नहीं आएगा। तो ये समसप्तका होते हैं ना, उनको अर्जुन से बदला लेना होता है। और वो क्या बोलते हैं कि हम जो है ना, हम लोग को बहुत परेशान किया अर्जुन ने, एंड नाउ वी वांट टू टेक रिवेंज, आवर हैंड्स आर रीचिंग, वी आर जस्ट वेटिंग टू फाइट विद अर्जुन। तो हम क्या करेंगे, अर्जुन को साथ युद्ध करेंगे और अर्जुन को वी विल ड्रैग हिम अवे, ठीक है। और आप जो है, अभी अर्जुन चले गए तो आप युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर करने चले जाना। तो ये लोग का गेम प्लान बन जाता है पूरे 12वें दिन के लिए। और फिर वहां पर सबसे एक बड़े योद्धा होते हैं, जिसका नाम होता है बागदत्ता। अभी बागदत्ता जो है वो कौरव सेना में सबसे ओल्डेस्ट वॉरियर रहते हैं, सबसे ओल्ड, बहुत मतलब है ना, वो बड़ी मुश्किल से उनकी आंखें खुली रहती हैं, इतने ओल्ड रहते हैं। बट ही वॉज ऑल्सो फिरोशियस वॉरियर, मतलब वो ऐसे फाइटिंग करते थे कि मतलब आपको सामने का कुछ दिखेगा नहीं, ऐसे फाइटिंग करते थे, ऐसे युद्ध करते थे। तो वो भी बोलते हैं कि मैं भी अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, और आपका जो रास्ता, ये पूरा गेम प्लान बन गया कि बागदत्ता होंगे, ये समसप्तका होंगे, और फिर द्रोणाचार्य है वो युधिष्ठिर महाराज को कैप्चर करने जाएंगे। तो ये पूरा प्लान बन गया, और उसी हिसाब से 12वें दिन का युद्ध शुरू होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो, और इसमें जो बागदत्ता होते हैं ना, उसका क्या होता है, बागदत्ता के पास एक एलिफेंट होता है, और वो एलिफेंट, दैट एलिफेंट वाज मैड एलिफेंट, एंड ओनली बागदत्ता वुड कंट्रोल हिम, वो और किसी को उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसने, बागदत्ता जो है वो अपने मैड एलिफेंट को लेके आया, और उसने सारे पांडवों की सेना में ना भड़कम मचा दिया, पूरा हड़कम मचा दिया, और सब इधर उधर भाग रहे। अभी पागल हाथी को कोई अभी कोई सामना थोड़ी कर सकता है। तो उसके बाद क्या किया, भीम जो है वो, भीम ने कैसे तो करके उसको कंट्रोल किया। भीम उसके नीचे जाते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और लोगों को ऐसा भी लगा कि अरे भीम, वो बैठ जाता है, उसको दबा देता है भीम, और उसको दबाने के पहले वो सरक जाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे भीम उसके नीचे दब गए, पर वो भीम उसको मैनेज कर लेते हैं। फिर अगेन क्या होता है, क्योंकि इसका पालतू हाथी रहता है ना बागदत्ता का, तो वो क्या करते हैं, अगेन ही पोक हिम, तो वो पूरा वापस से चालू हो जाता है उसका। और ये जब देखते हैं तो अर्जुन जो और भगवान सब देख रहे हैं, एंड व्हाट कृष्णा वुड डू, कृष्णा वुड ओनली स्माइल। अभी इतना घमासान युद्ध हो रहा है, उसमें भगवान सिर्फ मुस्कुराते हैं और सिर्फ देख रहे हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि अभी जो मेरे को है ना, ये पागल हाथी को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी जो पांडव की सेना है उसको खत्म कर देगा। तो आप मेरा जो रथ है ना वो बागदत्ता के पास लेके जाओ। तो वो बागदत्ता के पास लेके जाने, अभी देखो, अभी ये जो डायरेक्शन देना होता है ना कि अर्जुन को मुझे राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना होता है, तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे आवाज बहुत होता है, तो अर्जुन क्या करते हैं, कृष्णा की पीठ पे पैर से मारते हैं। अगर राइट साइड जाना है ना तो राइट पैर मारेंगे, अगर लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट पैर मारेंगे। ये भगवान की उदारता है अपने भक्तों के प्रति। तो वहां पर उनको डायरेक्शन देते हैं और बोलते हैं मुझे यहां लेके जाओ। लेकिन जब वो अर्जुन मूव होते हैं बागदत्ता की तरफ, उसमें क्या होता है, वो जो 10,000 थे ना,
समसप्तका, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे अर्जुन, तुम बहुत बार तुमने हमको छल से हराया है, अब हम तुम्हारे सामने हैं, तो कम ऑन फाइट विद अस। और उन लोग ने क्या ट्रिक किया, बिकॉज दे वांटेड टू ड्रैग अर्जुना अवे फ्रॉम युधिष्ठिर महाराज, तो वो क्या करते थे, ऐसे चैलेंज करते थे और चैलेंज करके पीछे चले जाते थे। और क्षत्रियो को क्या है, जब कोई चैलेंज करता है ना, तो ही कैन नॉट गो विदाउट एक्सेप्टिंग द चैलेंज एंड फाइट, वो नहीं कर सकता, तो अर्जुन को उसके पीछे जाना पड़ता है। तो वो जैसे ही चैलेंज करते पीछे चले जाते हैं, ऐसे करते 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 अर्जुन को दूर लेके गए, और दूर लेके गए। फिर उन दोनों के बीच में वो 10,000 थे, अर्जुन अकेले थे, और बहुत घमासान युद्ध हुआ वहां पर भी। और इतना जोरदार युद्ध हो रहा था कि वो एरो के बीच में ना कौन सामने है वो दिखाई नहीं देता था, इतना जोरदार युद्ध हुआ। फिर वो युद्ध में फिर अर्जुन ने फाइनली ब्रह्मास्त्र चलाया और वो सारे 10,000 सैनिकों को मार दिया। और उसके बाद अभी इमीडिएटली ही रियलाइज कि अभी क्या है कि वहां पर बागदत्ता है जो मैड एलिफेंट से हमारी सेना को प्रॉब्लम कर रहा है, और वहां पर द्रोणाचार्य भी हैं, उनका अटैक किधर है, युधिष्ठिर महाराज के पास, तो वो वहां पर जाएंगे उनको कैप्चर करने। तो वो इमीडिएटली आता है, बोलते हैं अर्जुन कृष्ण को कि मेरा जो अभी चैरियट है वो बागदत्ता के सामने लेके जाओ। अभी वो बागदत्ता के सामने आता है, और बागदत्ता के सामने जब फाइट करने आते हैं तो बागदत्ता और अर्जुन के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है, और अर्जुन जितने भी बाण मारते हैं ना, वो बागदत्ता सब उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, उसको कुछ होता ही नहीं है, बहुत जोरदार युद्ध होता है। फिर बागदत्ता ने एक स्पेशल वेपन जो सिर्फ अर्जुन के लिए रखा रहता है, एंड इट इज मिलियन टाइम मोर पावरफुल देन ब्रह्मास्त्र। मतलब ब्रह्मास्त्र का पावर जो है ना, उससे ज्यादा पावरफुल ये है। तो वो क्या करता है, अर्जुन की तरफ एरो करता है वो बागदत्ता जो है, और वो अर्जुन की तरफ छोड़ते हैं। जैसे ही अर्जुन को एम करके छोड़ते हैं, जो भगवान है कृष्ण, वो क्या करते हैं, somehow he tricks that weapon goes and hit Krishna's chest, and lo and behold that weapon got transferred into the beautiful garland on the Krishna's neck. जब ये देखते हैं ना सब, तो सब अचंभित हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया। मतलब बागदत्ता भी देखते हैं, सारे सैनिक भी देख रहे हैं, मतलब ये कैसे हो गया। और सबसे ज्यादा तो अर्जुन गुस्सा हो जाते हैं, बोलते अरे ये क्या है कृष्ण, आपने बोला था मैं कोई वेपन नहीं उठाऊंगा, और ये वेपन मेरे पास आ रहा था तो आई वुड हैव हैंडल इट ना, आपने ऐसा क्यों अपने ऊपर ले लिया। अर्जुन को बोलते हैं, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं तू थोड़ा शांत रहे। अभी यहाँ पे है ना, मतलब अपने को लगता है ना कभी कभी हम जो कार्य करते हैं, तो कार्य करते हैं हम इतने मशगूल हो जाते हैं अपने स्किल्स पे, अपने टैलेंट पे, कि हमें लगता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, माई टैलेंट, माई स्किल्स, माई एबिलिटी, माई एक्सपीरियंस, माई इन्फ्लुएंस, है ना। अनफॉर्चुनेटली सब जगह आई 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 मी एंड माइंड चल रहा है। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी वन ऑफ यू, बट ये है। उसकी वजह से क्या होता है, देखो, एक होता है स्वाभिमान, है ना। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्वाभिमान, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको कोई हानि ना पहुंचाए। अगर उसको हानि होगी ना, तो आपके अस्तित्व पे सवाल होगा, और आप अपने आप में जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं रख पाएंगे, और बिना कॉन्फिडेंस के आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। तो आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरा होता है मान। मान मतलब हम बोलते हैं ना, हमारे प्रियजन होते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मुझे आप पे बहुत मान है, बहुत गर्व है आपके ऊपर, तो एक मान होता है। तो स्वाभिमान और मान भी ठीक है, पर जब हम अपने स्वाभिमान में और अपने प्रियजनों के मान के चक्कर में दूसरों के मान और स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखते, तब वो अभिमान बन जाता है। अगर हमारे स्वाभिमान में और हमारे प्रियजनों के मान में अगर दूसरे लोगों के प्रति मान का हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या कर बैठेंगे, उनका अपमान कर बैठेंगे। और जब हम किसी का अपमान करते हैं, तो उससे हमारा अभिमान बढ़ता है। और सभी प्रॉब्लम की, सभी समस्याओं की जो जड़ जो है ना, वो वास्तव में अभिमान है। चाहे आप रावण ले लो, कंस ले लो, दंतवक्र ले लो, शिशुपाल ले लो, दुर्योधन ले लो, जितने भी लोग हैं, वो सारों का जो पतन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, अभिमान की वजह से। मतलब आई एम समथिंग। कुछ लोग यहां तक आगे बढ़ जाते हैं कि आई एम एवरीथिंग। सी, आई एम समथिंग इज नॉट बैड,
दैट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस, आई एम समथिंग, मतलब कुछ तो मैं कर सकता हूँ, पर मतलब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी और मैं ही में फर्क है। अगर मुझे लगेगा ना कि मैं ही कर सकता हूं तो वहां पर अभिमान हो गया, लेकिन मैं भी कर सकता हूं तो वो स्वाभिमान हो गया। सॉरी, आई मतलब पता नहीं है तो टेक्निकल तो नहीं हो रहा है ना, मैं थोड़ा अपना समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से दुराभिमान बोलते हैं हम लोग, जब भी आपने बोला ना कि दूसरों का अभिमान का हम लोग हाँ, फिक्र नहीं करते, मेरा ही सब मैं ही कर सकता हूँ, वो करेक्ट दुराभिमान हो गया। करेक्ट, परफेक्ट। तो हाँ, तो यहां पर फिर अर्जुन को क्या बोला, तो अर्जुन समझ गया कि अभी अपने को बोलने का नहीं है, भगवान कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि इन द एंटायर क्रिएशन दिस वेपन कैन ओनली बी फेस्ड बाय मी। अभी ब्रह्मास्त्र के सामने मिलियंस ऑफ टाइम मोर पावरफुल है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। और भगवान बोलते हैं कि ये जो अस्त्र है ना, वो मैंने दिया था भूमि देवी को, भूमि देवी से नरकासुर के पास गया और नरकासुर के पास कैसे तो करके ये बागदत्ता के पास पहुंचा है, और उसका सामना करने का शक्ति किसी में नहीं है। उसका जो ओनली वेपन था, इट गॉट फेल्ड बिकॉज ऑफ कृष्णास मर्सी, हाउ कृष्णा हैज प्रोटेक्टेड हिज डिवोटी। विदाउट वेपन, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। अभी बात आई बागदत्ता की, अभी उससे फाइटिंग करना है। अभी फाइटिंग में तो वो शूरवीर है, मतलब उसको परास्त करना मुश्किल है। लेकिन एक खास बात क्या थी, जैसा मैंने बताया ना कि ही वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन इन दी एंटायर कौरव आर्मी। तो उसको प्रॉब्लम क्या था मालूम है, वो इतने ओल्ड थे कि ही कुड बैरली ओपन हिज आईलिड। तो उसने क्या करके रखा था, उसने ना यहां से 2 धागे बांध के रखे थे, मतलब क्लॉथ बांध के रखा था कान की तरफ, ताकि उसकी आंख बंद ना हो, ऐसे ओपन करके रखता था ताकि उसको दिखे सामने और वो युद्ध कर सके। अगर वो कपड़ा निकल जाएगा ना तो उसकी आंखें बंद हो जाएगी, उसको दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए अर्जुन क्या करते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को इशारा करते हैं, अर्जुन एक बाण चलाते हैं, वो क्लॉथ को काट देते हैं। वो क्लॉथ को काट देते हैं, फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसको कोई दिखता नहीं है। देन अर्जुना शूट्स हिम। तो अभी ये जो 12वां दिन था ना, वो दिन में भी सारा जो प्लान था कौरव का, इट वॉज ऑल डूम, सब फेल हो गया। युधिष्ठिर महाराज कैप्चर नहीं हुए, समसप्तका 10,000 सैनिक मारे गए, बागदत्ता मारे गए, मैड एलिफेंट ने कुछ नहीं किया। तो ये दिस वॉज अ डे ऑफ पांडवा। ऐसा हर दिन होता था, ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग होता था। ये पांडवों का दिन था। उसके बाद 13वें दिन पे सबसे बड़ी मतलब करुणादायक जो इंसिडेंट टुक प्लेस, दैट वाज द डे व्हेन अभिमन्यु गॉट किल्ड। 16 साल का लड़का है, और वो 16 साल के लड़के को, अभिमन्यु मतलब अर्जुन का लड़का, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। अब 13वें दिन पे ये लोग ने क्या किया, अभी 12वां दिन पूरा जो था वो पांडवों का था। तो फिर से वो आया एंड दुर्योधन वाज वेरी डिसहार्टेंड, और वापस से उसका ब्लेम गेम चालू हो गया। और द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, मतलब द्रोणाचार्य को इतना इंसल्ट कर दिया उसने, मतलब कुछ भी बोला, वो सब भूल गया कि मेरे कमांडर इन चीफ है, ही इज माई गुरु, ही इज एल्डेस्ट, सब कुछ भूल के। तो द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं बोला, लेकिन द्रोणाचार्य ने बोला कि सी डोंट ट्रीट मी एज अ ट्रेटर, you know, I am your side and I am honestly fighting, but I told you that till the time Arjun is there, I will not be able to capture Yudhishthir Maharaj. But now you don't worry, tomorrow I will set up a certain formation which is only penetrated by Arjuna. Other than that, no one can penetrate it, and that is the Chakravyuh. और वो चक्रव्यूह का फॉर्मेशन करते हैं। और अभी क्या होता है, जो 13वां दिन शुरू होता है, 13वें दिन पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो होता है वो अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध करते 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 वो अर्जुन को दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि चक्रव्यूह जो बनाया रहता है, और सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या होता है कि युधिष्ठिर महाराज को प्रोटेक्ट करना है। अभी युधिष्ठिर महाराज को प्रोटेक्ट करना है, तो ये चक्रव्यूह में अर्जुन के बाद एक अकेला अभिमन्यु थे जिसको पता था कि कैसे चक्रव्यूह पेनिट्रेट किया जाता है। बट बिकॉज वेन ही वॉज इन द वूम ऑफ हिज मदर, उसमें 7 सेक्शंस होते हैं, तो 7 सेक्शंस को क्रॉस करने का उसके पास नॉलेज था। बट जो 8वां सेक्शन होता है ना, जो लास्ट सेक्शन होता है, वो टाइम पे सुभद्रा महारानी को नींद आ जाती है, और वो ही कुडंट लर्न दैट। वो घुस तो जाता है, पर वहां से बाहर कैसे निकलना ना, वो नहीं समझ पाता है। तो वहां से लेके गए, और यहां पर जयद्रथ,
अभी जयद्रथ को भगवान शंकर का एक बूंद था, उसने बहुत तपस्या किया। अभी देखो तपस्या का बात ऐसा आता है ना कि जो इविल मेंटालिटी भी रहते हैं ना, जो दानव भी रहते हैं ना, वो लोग को भी तपस्या का महत्व पता है, वो लोग भी तपस्या करते हैं। क्योंकि तप के बिना ना, सी बीइंग ए ह्यूमन, इफ यू आर नॉट हैविंग अ सर्टेन तपस्या, सम स्पेसिफिक तपस्या, देन अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से दिस, बट वी आर नॉट बेटर देन द एनिमल। नथिंग ऑफेंसिव, बट वी नीड टू बिलीव कि हर तरीके से हम देखेंगे, हम ना खाना पीना सोना, परिवार, समाज, बच्चे, जहां पे भी हम जो कुछ भी करते हैं, अगर ध्यान से देखोगे, बीइंग कॉन्शियस, आपको पता चलेगा कि जो जानवर करते हैं वो हम भी वही करते हैं एक तरीके से देखोगे तो। बात सिर्फ ये होगा कि वी आर डूइंग इट लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड वे, दैट्स द ओनली डिफरेंस। वी माइट बी सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, वी माइट बी स्लीपिंग इन द एयर कंडीशन बेडरूम, है ना, हम अच्छे से कपड़े पहनते रहेंगे, उनको कपड़े की जरूरत नहीं है। बट भागवतम बताता है कि खाना पीना सोना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना और प्रजनन करके अपने संतति को आगे बढ़ाना, ये सब लोग करते हैं। तो ये अगर हमारा इंटेलिजेंस, बीइंग अ ह्यूमन, इफ यू आर नॉट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द पावर टू यूज आवर इंटेलिजेंस टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी। आपको पता है, मतलब बहुत लोग हैं ना ऐसा बोलते हैं कि कुत्ते की मौत मर गया या कुत्ते की मौत मारूंगा। जानते हो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैनी ए टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनफैक्ट, जब कुत्ता मरता है ना तो बहुत भयंकर विभत्स तरीके से मरता है। उसके पूरे शरीर में कीड़े हो जाते हैं, उसको सब कीड़े खाते हैं, रेबिश हो जाता है और बहुत गंदे तरीके से मरता है। इसलिए ऐसा बताते हैं कि वो कुत्ते की जैसे मरेंगे। तो हम अगर हमारा इंटेलिजेंट, उसको पता नहीं है, अगर उसको कोई चोट भी लगी होगी ना, उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, एंड ही कैन नॉट आस्क क्वेश्चन व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, व्हाट ही इज कंसिडरिंग, ही और शी वॉट एवर, उनको क्या लगता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यही होता है और ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम मनुष्य योनि में आते हैं, एंड फॉर्चुनेटली वी आर पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तब हमें समझ में आता है कि वी हैव द पावर टू आस्क क्वेश्चन, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, व्हाई एम आई सफरिंग, व्हाई थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज द थिंग दैट आई एम सपोज टू डू बट आई एम नॉट डूइंग इट, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, हमारे में इंटेलिजेंट है, डिस्क्रिमिनेशन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका पालन करना है किसका नहीं करना है। अगर वो नहीं है तो मतलब, और ये क्या कौन सिखाता है? ये धर्म सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, धर्म सिखाता है ना। और अगर धर्म नहीं है तो आप पशु भी न रहना। तो ये इंटेलिजेंट में मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं कि तपस्या का बात ये होता है कि हमारे जीवन में, हमारा सोफिस्टिकेटेड कंफर्टेबल लाइफ के अंदर, इफ वी डोंट हैव सर्टेन तपस्या, सर्टेन सेक्रीफाइस, देन अनफॉर्चुनेटली वी आर, sorry to say this, but we are wasting our most precious and valuable life of human life, because the ultimate goal of human life is to do something better, not we have done for the lakhs of yonis, right? something needs to be done. अभी एक मर्सिडीज कार दिया जाए आपको और आपको बताया जाए कि भाई ये मर्सिडीज कार है ना, आप चला रहे हैं, मर्सिडीज कार को आप चला रहे हैं, भाई मोस्ट प्रीशियस कार, आप चल रहे हैं और चल के आपको मैन्युफैक्चरर का फोन आ रहा है, आप 200 की स्पीड पे जा रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरर का फोन आएगा, बोलेगा आपको गाड़ी कैसी लगी, आप बोलेगे बहुत अच्छी गाड़ी है यार, क्या भागती है, क्या पिकअप है, सीट कैसी है, बहुत अच्छी है, एसी कैसा है, बहुत अच्छा है, माइलेज सब कुछ अच्छा है, हेडलाइट टेल लाइट सब एकदम फैंटास्टिक, और वो आपको बोले कि सब कुछ अच्छा है गाड़ी में, बट अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगेट टू पुट ब्रेक्स इन द कार, तो आपकी क्या हालत होगी? सिमिलरली, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ मर्सिडीज कार that has been given to us. It has some purpose. Very fortunate to get the human form of life after many years. And there are separate section, we can take it from Bhagavatam, where all of us, we have prayed to just come out from the womb of our mother, whatever we have prayed to the Lord. क्या क्या मिन्नतें की है, क्या क्या प्रार्थनाएं की हैं भगवान से कि बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और निकालने के बाद मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपके भक्तों के संग में जाऊँगा, यात्रा करूँगा, सैटरडे प्रोग्राम में जाऊँगा, भगवद गीता पढ़ूंगा, भागवतम पढ़ूंगा। ये बहुत सारे हमने वादे किए हैं भगवान से, और ऐसा नहीं एक बार किया है, हर बार किया है, और हर बार करके हमने क्या किया है?
भगवान को धोखा दिया है। लेकिन फिर भी भगवान बहुत कृपालु है। भगवान भगवान को मालूम है बाहर जाएगा, सब भूल जाएगा, वापस से करेगा, बट कृष्णा इज वेरी होपफुल। उनके जितना पेशेंस था, मतलब आप अगर अपने परिवार में भी देखेंगे ना, कहीं पे हम लोग किसी को कितना भी ट्रस्ट करते हो, पर एक समय ऐसा आ जाता है जब हमारा ना सटक जाता है। मतलब तेरे को यार सामने सब कुछ दिखाया, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? तो होता है कि नहीं सबको? कहीं ना कहीं तो हमारा हटकेगा ना, कितना भी अंडरस्टैंडिंग होगा, कितना भी बॉन्डिंग, कितना भी केमिस्ट्री, कुछ भी होगा, एक पॉइंट पे आके हमको लगेगा कि यार इसको इतना समझाया, समझ ही नहीं रहा है, देन वील गिव अप। बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। फ्रॉम द मिलियंस ऑफ years, millions of births together, we have cheated Krishna every time, but Krishna is very hopeful. आज नहीं तो कल मेरे तरफ मुड़ेगा जरूर, भगवान को विश्वास है। और यू नो व्हाट, बिकॉज ऑफ आवर कर्मा वी आर बीन टू मैनी डिफरेंट स्पीसीज। अभी 30 लाख टाइप के वनस्पतियां हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं, 4 लाख टाइप के मनुष्य हैं, नवजा जललक्षाणी मतलब 9 लाख टाइप के पानी में रहने वाले जीव हैं, और 11 लाख टाइप के उड़ने वाले जीव हैं। ऐसा सब मिला के 84 lakhs ऑफ स्पीसीज होता है। 84 lakhs स्पीसीज होते हैं। स्पीसीज में हर स्पीसीज का अपना अपना एक कार्यकाल होता है। आप सोचो कि एक राउंड में, एक चक्कर में 84 lakhs में हम कितने सालों तक जिए हैं, है ना? उसके बाद हमको ह्यूमन फॉर्म मिला है। और ह्यूमन फॉर्म इसलिए मिला है कि ह्यूमन फॉर्म मिलने के बाद we understand spirituality, we understand our relationship with the Lord, we do certain things so that we don't have to go again back to that species. मतलब it is very painful. अभी भूख लगी है, मम्मी को बोलेंगे अरे भूख लगी है, मिल जाएगा, और कोई योनि में ढूंढना पड़ता है, खाना पड़ता है, और दूसरे प्राणियों का भय भी रहता है। कोई भी आके, आपने देखा है कभी कौवे को और चकली को कभी खाते हुए? ऐसा खाएगा, ऐसा ऐसा देखेगा, ऐसा खाएगा, ऐसा ऐसा देखेगा, पानी देखेगा, कितना पेनफुल है। आपको वो ऐसे बोले तो हम आराम से बैठ के खाते हैं ना प्रेम से, ऐसा नहीं है उनका। तो what I'm saying is, in our life we need to have a some sacrifice, some tapasya, little tapasya, थोड़ा भी, जो कुछ भी हो, which is outside our comfort zone, little one step towards spirituality. प्रेम किसी का कभी बढ़ेगा? हम अर्जुन की बात करते हैं ना, तो अर्जुन को भगवान ने क्या, मतलब अर्जुन स्पेशल है, अर्जुन वास्तव में स्पेशल है। ऐसा बताया जाता है कि अर्जुन जब सोते हैं ना, तो उनके शरीर के एक एक बाल से कृष्ण का नाम निकलता है। ऐसे भक्त है भगवान के, तब जाके भगवान इतना फेवर करते हैं। मतलब भगवान सबको फेवर करते हैं, बट इट इज ऑलवेज लाइक कृष्णा इज लाइक ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तेव भजाम्य हम। मतलब जिस जिस प्रकार से हम भगवान की तरफ जाएंगे, उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो तपस्या, तो उसने भी तपस्या की थी। कमिंग बैक टू नाउ टू आवर थीम, जयद्रथ ने तपस्या की थी और भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि एक दिन, भगवान ने उसको वरदान दिया था कि तू एक दिन सारे पांडवों को एक साथ रोक सकता है। अभी सारे पांडवों में अपने अपने सब धनुर्धर, अर्जुन धनुर्धर है, गदा में मास्टर भीम है, युधिष्ठिर के पास भाला है, सब अपने अपने आप में कुशल है। उसको ऐसा वरदान था कि वो कोई भी एक दिन सबको एक साथ में रोक सकता है। और आज वो दिन था जब अभिमन्यु जब गए चक्रव्यूह के अंदर, तो उसको बचाने के जाने के लिए एवरीवन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, क्योंकि अर्जुन तो थे नहीं, अर्जुन को तो लेके गए थे दूसरी जगह फाइट करने के लिए, तो वो सब उसको बचाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन सेंटर में कौन रहता है? जयद्रथ। और जयद्रथ रहता है, वो सबको रोक लेता है एक साथ में। उसका जो वरदान था ना महादेव का, वो रोक लेता है। और यहाँ पे अर्जुन, जब अभिमन्यु, मतलब अभी भी बोल देंगे ना तो भी रोंडे खड़े हो जाएंगे, 16 साल का लड़का है, ऐसे ऐसे महारथियों के बीच में जाता है कौरव के। मतलब इट्स वेरी ड्रामेटिक, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन इन महाभारत। आप पढ़ेंगे ना तो मतलब आपकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, आपको गर्व भी आएगा, और आपको लगेगा कि मैं भी अभी महाभारत में युद्ध में जाके अभिमन्यु के साथ लड़ाई करता हूं और उसको बचाता हूं। ऐसा सूरवीर योद्धा, वो इस तरीके से फियर्स, ही वॉज फाइटिंग लाइक अ विंड। मतलब ऐसा घमासान युद्ध करता है। और एक टाइम पे तो कौरवों को ऐसा लगा कि ये जो अर्जुन का बेटा है वो आज पूरा युद्ध खत्म कर देगा। मतलब सो फिरोशियसली ही वॉज फाइटिंग, मतलब कोई किसी का ताकत नहीं था कि वो उसको कोई रोक सके, ऐसे फाइट करता था वो। और एक टाइम के लिए जितने भी योद्धा थे ना, उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, जितने भी थे, शाल्य, भूरिश्रव और दूसरे एक भी थे, सबको एक टाइम के लिए उसने बेहोश कर दिया था। इतना पावर था अभिमन्यु में।
और फिर अभिमन्यु वहां पे जाते हैं और अभिमन्यु जब फाइटिंग कर रहा है ना, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अभिमन्यु ने क्या किया, वो फाइटिंग करते वक्त दुर्योधन के पुत्र को मार दिया फाइटिंग में। जब दुर्योधन ने ये देखा ना, तो ही बिकेम आउटरेजियस और सभी युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके जितने भी महारथी थे ना, 6-7 थे, आप सोचो कि उसके दादा परदादा की उम्र के लोग एक अकेले 16 साल के लड़के के साथ एक साथ में युद्ध करते हैं, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द वॉर। वो पहले डिसाइड हो चुका था कि क्या होगा, इसमें स्त्रियां नहीं आएंगी, सूर्यास्त से युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त तक होगा, बीच उसके बाद कहीं पे भी कोई फाइटिंग नहीं होगा। जब एक व्यक्ति एक से लड़ रहा है तो दूसरा कोई आएगा नहीं। तुम्हारे सामने अगर जो लड़ रहा है वो अगर निशस्त्र है तो उसके साथ फाइट नहीं करने का, उसको मारने का नहीं। वो बेहोश हो गया है तो उसको नहीं मारने का, इक्वल इक्वल में फाइट्स होगा। ये सारे रूल्स थे, बट वो सारे रूल्स का उल्लंघन करके सारे 6-7 महारथी आकर एक अकेले अभिमन्यु पे फाइटिंग करते हैं। और अभिमन्यु फिर भी उन सबको पहुंच जाता है, अभिमन्यु फिर भी उनके साथ फाइटिंग करता है और सबको मतलब इतना पसीना पसीना करता है, सबकी हालत खराब हो जाती है अभिमन्यु के सामने लड़ने में। और फिर ये लोग क्या करते हैं, पीछे से जाके उसका बो को ब्रेक कर देते हैं, पीछे से मारते हैं। मतलब अभी यहां से फाइट कर रहा हूं, पीछे से आके कोई मारेगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा, तो उसका बो ब्रेक हो जाता है, तो फिर वो तलवार से लड़ता है। और एक वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नथिंग इन द हैंड्स ऑफ अभिमन्यु, और फिर वो रथ का जो पहिया है ना उसको उठा के फाइटिंग करता है। मतलब आप वो पढ़ेंगे ना, मतलब आपको ऐसा ही, मतलब ये सब बॉलीवुड की एक्शन मूवी आपको क्या है, महाभारत जो है ना, इट इज मतलब वे बियॉन्ड दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और आपने जो भी मूवी आप देखोगे ना एक्शन का, आपका 300 देखो या कोई भी देखो, ये सब कुछ नहीं है उसके सामने। ऐसा महाभारत का वॉर है, उसमें अभिमन्यु फाइटिंग करता है रथ के पहिए से और ऐसे शूरवीर की तरह लड़ता है। फिर क्या करता है, उसका लड़ाई जो होता है ना वो दुशासन के बेटे के साथ होता है, और दोनों गदा से युद्ध करते हैं। और गदा से युद्ध करते हुए दोनों बेहोश हो जाते हैं, और जब बेहोश हो जाते हैं उसमें दुशासन के बेटे को जल्दी होश आ जाता है, और जब होश आ जाता है तो वो जो बेहोश है उसको जाके मार देता है अभिमन्यु को, और फिर ये सब लोग भी मिलके उसको मारते हैं। और ये जो दिन था वो पांडवों के लिए बहुत ही दुखद समाचार वाला दिन था। मतलब उनके घर का जो बेटा है अभिमन्यु, उसका वध हो गया, और वो पूरा मातम छा जाता है पांडवों की सेना में। और अर्जुन तो थे नहीं, अर्जुन को शाम को आके पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। अर्जुन की आंखें लाल हो जाती है और अर्जुन पूरे क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और पता चल जाता है कि किसकी वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? जयद्रथ की वजह से। क्योंकि अगर जयद्रथ नहीं होता, ये लोग पांडवों को नहीं रोकता, तो पांडवों में से जाके किसी ने कोई ना कोई तो बचा लेता। मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग, विजुअलाइजिंग दैट सीन। आप सोचे वो लड़का जो लड़ रहा है उसको बचाने के लिए इसको रोक लिया था पांडवों ने, इसको पता चल जाता है। और उसी समय पे अर्जुन जो है वो घोषणा करते हैं, वो चिल्लाते हैं, आंखें लाल हो गई है, वो रोते रोते जोर से घोषणा करते हैं कि कल के दिन में सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। और जब ये घोषणा करते हैं ना, तभी भगवान अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं और अर्जुन वॉज रोरिंग। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब बजता है ना उधर, तो जितने भी लोग थे ना कौरव सेना में और पांडव सेना में, सबके हृदय दहल जाते हैं। मतलब इतना जोरदार आवाज होता है, भगवान अपना शंख बजाते हैं। और ये पर उसके साथ में अर्जुन एक वाव और ले लेते हैं। अर्जुन इतने गुस्से में आ जाते हैं ना, और पता चलता है कि जयद्रथ की वजह से हुआ, और उसको ये सब भी पता चलता है कि किस प्रकार से उसको घेर के अगेंस्ट द रूल ऑफ द वॉर उसको मारा गया है, चीटिंग करके। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि क्या है ना, जैसा आपने सही कहा, तो जो वॉरियर होते हैं ना उनका भी एक रिस्पेक्ट होता है। मतलब यही वॉर में जब अभी अपने एंड में जब वॉर होता है ना, वॉर के एंड में जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है ना, तो उसमें भी दुर्योधन जो है ना, भीम जो है वो दुर्योधन को पेट पे लात मारते हैं और उसके मस्तक पे लात मारने जाते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज रोक लेते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज ही इज अ सोल्जर, इज अ वॉरियर। तो जैसा इन्होंने कहा ना, उसी प्रकार से मतलब वो लोग तांडव करते हैं। जब इसको अभिमन्यु को मार दिया ना, तो उसका जो बॉडी है उसके साथ ये लोग खेलते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसको लात से मारते हैं अभिमन्यु को।
तो वो सब सुन के ना अर्जुन के अंदर इतना आक्रोश हो जाता है, वो करता है कि अगर मैंने कल शाम तक, ये तो ले लिया, भगवान भी उसके साथ थे कि इसको मारेंगे, लेकिन वो क्या वाव ले लेता है कि अगर मैंने कल शाम को अगर जयद्रथ को नहीं मारा, देन आई विल एंटर इनटू फायर, आई विल कमिट सुसाइड, अगर मैंने इसको कल नहीं मारा तो। जब ये लिया ना, तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? दुर्योधन। क्योंकि अभी क्या है, अभी अपने को वॉर लोअर तो लड़ना ही नहीं है, अभी क्या करना है, एक ही काम करना है बस, अभी सिर्फ जयद्रथ को प्रोटेक्ट करना है बस, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। और यहां पे अभी दुर्योधन खुश हुआ और जयद्रथ दुखी हो गया और जयद्रथ उसका फ्रेंड था ना दुर्योधन का, अभी ये टेंशन में आ गया जयद्रथ, कह रही मतलब कोई भी आदमी ऐसा बोलेगा कि मैं अपनी जान दे दूंगा अगर इसको नहीं मारा, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट होगा उसके ऊपर, और जिसके लिए बोला है उसकी हालत क्या होगी। तो बोलते हैं अभी ये जो जयद्रथ था वो उसके शिविर में आते हैं और वो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। वो दुर्योधन को बोलता है कि अरे अभी मैं क्या करूं, तो दुर्योधन बोलता है अरे उसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, अरे पूरी सेना अपनी पड़ी है इतनी सारी, 11 अक्षौहिणी सेना है। अभी आपको अक्षौहिणी का मतलब नहीं पता है तो मैं बताता हूं जितना मेरे को पता है, 21,870 चैरियट, 21,870 एलिफेंट, 65,610 हॉर्स राइडर्स और 1,09,650 और समथिंग इंडिविजुअल सोल्जर, ये सबको मिला के एक अक्षौहिणी होती है। ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों के पास और 7 थी पांडवों के पास। अभी ये दुर्योधन उसको बोलता है कि ये अक्षौहिणी सेना है ना वो तेरी रक्षा करेंगे, तो उसको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो वो जाता है, वो बोलता है द्रोणाचार्य को बोलता है, द्रोणाचार्य आप इनको समझाओ कि अपने अपने शिविर में कितने सारे योद्धा हैं और ये सारे योद्धा मिलकर क्या हम एक जयद्रथ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं देखो तुम जो कह रहे हो उससे मैं पूरी तरह से तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि अर्जुन जो है ना वो इन सब पे भारी है और अर्जुन के लिए इन सबको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? उसकी 3 स्पेशलिटीज है अर्जुन की, ये सब अर्जुन सबको बनना है। अभी सचिन तेंदुलकर ने भी अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा है ना, अर्जुन सबको बनना है, पर अर्जुन की जो क्वालिटीज है ना उस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए कि वो क्या है और क्या करते थे। अर्जुन का 3 स्पेशलिटी है कि अर्जुन के पास पहली बात तो उसके पास सेलेस्टियन वेपन, दिव्यास्त्र थे उसके पास, और वो इस देह को लेकर, जैसा बताया था ना मैं खाली राजप्राण ने बताया था लास्ट टाइम, वो इसी देह को लेकर स्वर्ग तक जाके आया है और उसके पास सेलेस्टियन वेपन है, वो उसके पास दिव्यास्त्र है। दूसरा उसका जो एनर्जी लेवल है ना, उसका जो एंथुसियाज्म, जो एनर्जी उसके अंदर जो पावर है वो सारे सैन्यों में सबसे ज्यादा है, मतलब अर्जुन के अंदर इतना एनर्जी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपने शिविलरी एक्ट्स में इतना मास्टरी किया है, इतना प्रैक्टिस किया है कि अगर उसकी आंखें भी बंद हो जाए ना तो भी वो फाइट कर सकता है, उसने इतना प्रैक्टिस किया है। तो बोलता है फॉर बिकॉज ऑफ दिस रीजन अर्जुन हैज एन एज, दुर्योधन उसको द्रोणाचार्य बोलते हैं। बट तुम इसका टेंशन मत लो, अभी है ना मेन थीम चालू होता है, ये जो 14वां दिन होने वाला है ना, 13वें दिन पे क्या है हो गया, अभिमन्यु को मार दिया, अभी 14वां, आई विल नॉट टेक मच टाइम बट दिस इज द कंक्लूजन। आई deliberately wanted to select that topic to just to tell you the beauty of Krishna's arrangement, how Krishna is the servant of his servant, and not only servant of his servant but the animal of his servant also। भगवान अभी आगे पता चलेगा भगवान क्या करते हैं। अभी क्या करते हैं यहाँ पे जो द्रोणाचार्य है ना वो बोलते हैं कि दिस डे ऑन 13th day we have formed the चक्रव्यूह, ठीक है। अभी चक्रव्यूह से बड़ा एक व्यू होता है, the another kind of formation, उसको बोलते हैं लोटस फॉर्मेशन। अभी चक्रव्यूह होता है ना, एक पर्टिकुलर एंगल में एक डिजाइन में चक्रव्यूह बनता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम था, जयद्रथ को बचाना है। अभी जयद्रथ वुड बी समवेयर हियर और यहां पे पांडवों की सेना है, उसके पहले चक्रव्यूह होगा, ठीक है, चक्रव्यूह होगा। उसके बाद तो द्रोणाचार्य ये आश्वासन दे रहे किसको, दुर्योधन को, कि ये चक्रव्यूह होगा। आज हमने चक्रव्यूह किया तो हमने वी किल्ड अभिमन्यु, अभी दोबारा मैं चक्रव्यूह का फॉर्मेशन करूंगा, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोटस व्यू है जो उसके बाद होगा। और लोटस व्यू के बाद होगा निडल व्यू, और निडल व्यू के बाद
वहां पर 6 महारथी होंगे, जिसमें आपके द्रोणाचार्य कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, भूरिश्रव, शाल्य और एक कोई है, वो 6 महारथी होंगे। और उसके बाद 21 किलोमीटर के बाद जयद्रथ होगा। ऐसा फॉर्मेशन करेंगे। ये सब प्लान हो गया, ठीक है। और ये प्लान होने के बाद अभी दूसरा दिन शुरू हुआ युद्ध का। अभी जो चक्रव्यूह की बात आ रही थी ना, वो चक्रव्यूह, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, द्रोणाचार्य कहाँ रहेंगे? द्रोणाचार्य जो रहेंगे वो चक्रव्यूह के बाद, चक्रव्यूह को अगर मान लो अर्जुन को मालूम है चक्रव्यूह कैसे ब्रेक करना है, अर्जुन ने चक्रव्यूह ब्रेक कर भी लिया, तो उसके बाद ही हैज टू फाइट द्रोणाचार्य, वो स्टैंडिंग बिफोर दी लोटस व्यू, तो उनको वहां पे फाइट करना है। अब यहां से शुरू होता है अर्जुन का, तो सब लोग को खाली एक ही गोल था सबका। और इसके पहले, अभी शुरू होने से पहले, द अमेजिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एपिसोड, नाउ लुक एट द ब्यूटी, कंसर्न, लव, अफेक्शन ऑफ कृष्णा फॉर हिज डिवोटी। अभी ये तो हो गया, उसके शिविर में सब हो गया, ऐसा ऐसा करेंगे, प्लानिंग हो गया। अभी पांडवों के शिविर में भगवान कृष्ण बैठे हैं। भगवान कृष्ण मस्तक पे अपना हाथ रख के बैठे हैं, और भगवान कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इज इन एंजाइटी। वो अर्जुन को बोलते हैं कि मतलब जयद्रथ को मारना था, वो ठीक है, मारते उसको, पर तेरे को ये 1.5 शाना बनने किसने बोला था कि मैं इसमें आत्महत्या कर लूंगा उसको नहीं मार पाया तो? मतलब आई एम यूजिंग माई लैंग्वेज, बट बोला कि ये बेवकूफ, यू आर फुलिश, व्हाट यू हैव डन। तेरे को मालूम है कि क्या होगा कल? And Lord Krishna explains Arjuna everything, the way I have described ना, how it will be entirely planned। वो पूरा भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि ये चक्रव्यूह होगा, चक्रव्यूह के बाद द्रोणाचार्य होंगे, द्रोणाचार्य के बाद लोटस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद नीडल फॉर्मेशन होगा, और नीडल फॉर्मेशन के बाद, हाँ एक बात तो कहना भूल गया, ये सब चक्र बोलने के बाद भी जो अपना जयद्रथ है, he was not satisfied, उसको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर वो नेक्स्ट डे पे पता चलेगा कि दुर्योधन और क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि ऐसा सब होगा, 21 किलोमीटर 6 महारथी होंगे, और वो लोग नॉट ओनली विंड, साउंड, बट इन एवरी डायरेक्शन साइमल्टेनियसली दे ऑल कैन फाइट इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल द 10 डायरेक्शन, 10 दिशाएं कहा जाता है, वो सब में फाइट कर सकते हैं। और उसके 21 किलोमीटर के बाद जयद्रथ होगा। तेरे को मालूम है कि ये इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रीच जयद्रथ टुमारो, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। और ये लोग के साथ लड़ाई करना मतलब इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी अर्जुन क्या बोलते हैं? दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। और अर्जुन लिटरली जाके अपने शिविर में सो जाते हैं, और कृष्णा इज लाइक अप एंड डाउन, गोइंग हियर एंड देयर, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड नॉट डू, क्या करूं, अब क्या करूं, ये तो पागल ने करके हो गया। अब भगवान जाग रहे हैं, भगवान को चिंता हुआ कि अभी क्या करेंगे, मतलब। तो भगवान रात को, अभी जैसे अर्जुन के सारथी भगवान है ना, भगवान के भी एक सारथी हैं, इनका नाम है दारुक, जो द्वारका में है। तो भगवान उसको आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि कल अगर हम सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए, तो आई विल ब्लो माई कॉन्च सेल एंड आई विल ब्लो अ पर्टिकुलर नोड। बाय हियरिंग दैट नोड, what you have to do, you have to bring my chariot with all the weapon, and right then and there I will finish the entire Kaurav dynasty, entire war। ये दारुक को बोल दिया। और उसके बाद वहां पर भगवान जो है, भगवान शिव अर्जुन के सामने प्रकट होते हैं, अर्जुन को पाशुपतास्त्र देते हैं, और उसको बोलते हैं डोंट वरी, विक्ट्री विल बी योर्स बिकॉज यू आर ऑन द साइड ऑफ धर्म। उसको वरदान मिलता है, और फिर दूसरे दिन का महासंग्राम शुरू होने वाला है। और वो सबकी आंखें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर है, सिर्फ अर्जुन को रोकना है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जयद्रथ अपने अभी उसके सामने बहुत सारा उसने बोल दिया, मतलब वो तो ऐसा हो गया था कि मैं छोड़ के भाग जाता हूँ, मैं अपने गाँव चला जाता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है। उसने दुर्योधन ने बोला अभी तू नहीं जा सकता है, अभी तेरे वजह से तो मेरा जो एनिमी है वो आत्महत्या करने वाला है। अभी तू चला गया तो वो तो फाइट ही नहीं करेगा, वो तो बोलेगा वो तो था ही नहीं, तो तेरे को जाने नहीं दे सकता। अभी वो फंस गया, मतलब वो क्या करेगा, अभी वो उसको दोस्ती भारी पड़ी। और मतलब वो उसका बहनोई भी है, जयद्रथ जो है उसका बहनोई है दुर्योधन का। तो वो बोलते अभी तू जा नहीं सकता,
तो मतलब कैसे तो कह रहता है, बोलता है इतना सब किया है बट ही वॉज स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, बट कैसे तो भी वो अपने आप को संभालता है, उसको रखते हैं। अभी यहाँ पे अर्जुन मतलब बोलते हैं ना कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कुछ होता है ना तो वो यही होता है कि बेटे का मृत्यु अपने बाप के आंखों के सामने, और अर्जुन ने वो देखा है, उसकी कथा सुनी है कि क्या क्या किया है ये लोग ने बेटे के साथ। वो सुन के अपनी आंखों में ज्वालामुखी भरकर अर्जुन फाइट शुरू करते हैं। और आप मानेंगे नहीं, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है कि विद इन सेकेंड ही ब्रेक द एंटायर चक्रव्यूह। पूरा जो फर्स्ट रहता है ना वो पूरा ब्रेक हो जाता है विद इन सेकेंड। और उसके बाद वो जाते हैं लोटस व्यू के पास। अभी लोटस व्यू में कौन खड़ा है? द्रोणाचार्य। अभी द्रोणाचार्य खड़े लोटस व्यू में, उसके साथ फाइट करते हैं। अभी द्रोणाचार्य इसके गुरु हैं और इन्होंने इनसे ही सीखा है। अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। अब ये घमासान युद्ध होता है जिसमें किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब लाइक इक्वल जैसा फाइट होता है, तो उसमें कोई होता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? मेनी आवर्स हैज पास, सूर्यास्त से पहले उधर पहुंचना है। अभी यहाँ पे क्या होगा, इतना फाइटिंग हो रहा है और बहुत डिस्क्रिप्टिव है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ नहीं तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि द्रोणाचार्य जब उससे फाइटिंग कर रहे रहते हैं तो फाइटिंग करते करते बहुत देर तक फाइटिंग होता है। फिर भगवान कृष्ण, नाउ लुक एट द ब्यूटी एंड जीनियस ऑफ कृष्णा। भगवान क्या करते हैं? भगवान अर्जुन को इशारा करते हैं। अभी उसके साथ फाइटिंग कर रहे हैं, द्रोणाचार्य के साथ फाइटिंग हो रहा है, बट वो फाइटिंग होते 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 कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान फाइटिंग करते हैं, अर्जुन इज स्टिल फाइटिंग। भगवान फाइटिंग करते हैं, करते 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 द्रोणाचार्य के रथ के पास से रथ निकाल के उनके पीछे लेके जाते हैं और ही बाईपास दी द्रोणाचार्य जस्ट टू पेनिट्रेट दी लोटस फॉर्मेशन। अब वो ये कर दिया ना तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्षत्रिय। मतलब आप किससे लड़ाई कर रहे हो, इट इज लाइक उसको बाईपास कर, या तो आप उसको मार दो, उसको सरेंडर करा दो और फिर आगे बढ़ो। भगवान ट्रिक करते हैं। भगवान क्या करते हैं? इसका कुछ आने वाला नहीं है और इधर टाइम जा रहा है, इसको तो कुछ पड़ी नहीं, इसने बोला तब तुम देख लेना, मुझे तो देखना पड़ेगा ना। तो भगवान क्या करते हैं? ट्रिक ने स्मूथली इज बाईपास द्रोणाचार्य, बाईपास कर देते। द्रोणाचार्य बोलते हैं अरे ये कैसे कर सकता है तू? बोलते इन द नेवर हिस्ट्री यू हैव डन लाइक दिस, हाउ कैन यू बाईपास योर एनिमी विदाउट फाइटिंग विद हिम? तो अर्जुन क्या बोलते हैं? यू आर नॉट माई एनिमी, यू आर माई गुरु। तो वहां से करके बाईपास करके निकल जाते हैं और इतना थका दिया रहता है ना द्रोणाचार्य को कि द्रोणाचार्य लाइक पर्स्परिंग, मतलब वो पूरा, मतलब उनका पूरा शक्ति चला गया रहता है, इतना थका दिया रहता है अर्जुन ने। और अर्जुन आगे निकल जाते हैं फाइटिंग करते करते। और यहां पर कौन आता है? अभी अर्जुन को जाने दिया तो कौन आएगा? किसको तकलीफ होगा? दुर्योधन को। दुर्योधन आता है और फिर से बोलना का शुरू करने का स्टार्ट करता है, अनाप शनाप बोलता है, कुछ भी बोलता है। वो मतलब ऐसा व्यक्ति है ना, वो उसको पता नहीं है कि कौन सी, अभी कमांडर इन चीफ बनाया है तो पब्लिक के सामने, सैनिक के सामने तो उनका इंसल्ट कर रहा है। और द्रोणाचार्य क्वाइटली बोलते हैं आई एम जस्ट टॉलरेटिंग यू एंड आई एम जस्ट फॉरगिविंग यू जस्ट लाइक अ फादर फॉरगिव द इम्प्रूडेंट सन। यू लीव मी अलोन, आई कैनॉट फाइट अर्जुना बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड। नाउ इट इज अ चांस फॉर मी टू कीप माई वर्ड्स ऑफ माई ओरिजिनल प्रोमिस। आई एम गोइंग टू कैप्चर युधिष्ठिर, यू गो एंड स्टॉप अर्जुना। अभी ये जब बोलते हैं ना तो वो अर्जुन बोलता है, हंसने लगता है, अरे दुर्योधन हंसने लगता है, बोलता है अरे आप जिसके गुरु है, आप इतने घंटों से उससे लड़े, आप उससे नहीं जीत पाए तो मैं कैसे उसको रोक पाऊंगा? तो बोलता है कि दैट आई नो। उसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि आई एम गिविंग यू वन आर्मर विच इज गोल्ड आर्मर। और वो आर्मर कैसा है कि उसके अंदर कोई भी तीर मारेंगे ना तो वो जाएगा नहीं अंदर, तीर टूट के नीचे गिर जाएगा, ऐसा आर्मर है। तो वो पहन के बहुत खुश हो जाता है और जाता है अर्जुन के साथ लड़ाई करने के लिए। अर्जुन के सामने जाता है, अर्जुन को रोकता है तो अर्जुन को तीर मार रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा है। तो और दुर्योधन भी मौज में आ जाता है, फाइटिंग करता है। तो फिर भगवान उसको इशारा करते हैं, अरे ये टाइम पास करने आया है तो इसको मार दे, दिस इज द टाइम टू किल हिम। तो लेकिन अर्जुन को क्या पता रहता है, अर्जुन को दुर्योधन को मारने का वाव किसने लिया रहता है? भीम ने। मतलब नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि वो भीम का वाव है दुर्योधन को मारने का। तो अर्जुन क्या करे, वेरी स्मार्टली एंड एक्सपर्टली व्हाट ही डज, ही पिक अप द एरो, और जो आर्मर रहता है ना उसके नाखून के पास कोई आर्मर नहीं रहता है, तो जो एरो है ना वो नाखून में मारता है। और नाखून में ना इट्स वेरी डेलिकेट,
आप मतलब आपको पता है कि नहीं पता है, जो 3rd डिग्री रिमांड में जाते हैं ना पुलिस स्टेशन में, जो लोग 3rd डिग्री रिमांड में होते हैं, दे हैव अ पनिशमेंट कि ये जो उंगली है ना, उंगली और पैर के नाखून, उसमें खिल्ली लेते हैं, छोटा सा खिल्ली होता है ना, वो लेते हैं यहाँ पे और हथौड़ी से मारते हैं वो 3rd डिग्री रिमांड है वो। तो इस तरीके से वो तीर मारता है उसके नाखून के पास, और उसको इतना भयंकर पेन होता है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो भाग जाता है वहां से, वो चला जाता है। तो वो चला गया यहाँ से। फिर कर्ण आता है, बहुत लंबा स्टोरी है। फिर कर्ण आता है, कर्ण के साथ फाइटिंग होता है, फिर कर्ण को डिफीट कर देता है अर्जुन, और फिर उसके बाद आगे चले जाते हैं, मतलब कर्ण भी उसके सामने नहीं टिक पाता है, उसके आगे चले जाते हैं। एंड देन व्हेन अबाउट टू पेनिट्रेट दी लोटस फॉर्मेशन, भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्णा प्रसिद्ध पॉज बटन, पार्थ को बोलते हैं, देखो पार्थ, इतना युद्ध कर करके मेरे घोड़े थक गए हैं, अभी वो थोड़ा आराम करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। कौन से दिन पे बोल रहे हैं? जब अर्जुन ने वाव लिया है, अभी इतने सारे घंटे चले गए, और भगवान को बोलते हैं, नाउ लुक एट द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ अर्जुना ऑन कृष्णा। भगवान ने बोल दिया ना, बोला हाँ ठीक है। तो अर्जुना बाय हिज एरो ही क्रिएट द लेक, ही क्रिएट द ग्रास, ही क्रिएट द हट। वो हट में जाके अर्जुन के जितने भी घोड़े होते हैं, भगवान उसको रथ से निकालते हैं, अंदर लेके जाते हैं, उनको मालिश करते हैं, उनको ब्रशिंग करते हैं, उनको घास खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। नाउ कृष्णा इज सर्विंग हुम? अर्जुनास हॉर्सेस। तो कृष्णा इज नॉट ओनली द सर्वेंट ऑफ हिज सर्वेंट, बट इज सर्वेंट ऑफ हिज एनिमल्स ऑल्सो। एंड जब ये दृश्य देखते हैं ना, मतलब वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, अभी क्या है, अर्जुन है ना, अर्जुन रथ के नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने घमासान युद्ध करते हैं, नीचे खड़े होकर युद्ध करते हैं सबसे, कौरवों से। और जो भगवान कृष्ण है ना, अब देखो ये, मतलब जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस पिक्चर। एक तरफ अर्जुन लड़ रहे हैं, और जो कृष्ण है वो अपने घोड़ों को सहला रहे हैं, है ना। और ये सब जो दृश्य तो देखते हैं ना वहां पे, मेनी ऑफ देम रिमेंबर कृष्णा herding the cows in Vrindavan. It is Krishna's beauty who can create Vrindavan even in the Kurukshetra. तो उसको सहलाते हैं, अपने घोड़ों को मालिश वालिश करते हैं, तब तक अर्जुन फाइटिंग करते हैं। और अर्जुन फाइटिंग करने के बाद, बहुत आगे लग रहा है, आप भागवत महाभारत में पढ़ना थोड़ा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा अपन थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं, फिर उसमें वापस रथ पे आते हैं, फिर फाइटिंग होता है, फिर एंड में सबको परास्त करने के बाद, उसके बीच में बहुत कुछ होता है। उसके बीच में वो शकुनी आता है, तो शकुनी मामाशीर सब जानते हैं ना, वो आते हैं फाइटिंग करने के लिए अर्जुन से। और उसके पास क्या है, उसके पास जादुई शक्ति है। तो वो क्या करता है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जहाँ पे ऐसा इल्यूजन मतलब पूरा अंधेरा छा जाता है, और ऊपर से मल मूत्र का त्याग होता है, हड्डियाँ गिरती है, और ऐसा सब ऐसा एकदम गंदा माहौल कर देता है, और जिसमें कुछ नहीं दिखता है सामने का। तो अर्जुन के पास ज्योति अस्त्र रहता है, तो वो ज्योति अस्त्र से पूरे इल्यूजन को खत्म कर देता है, और इसको भी हानि पहुंचा के, इसको भी थोड़ा सा साइडलाइन करके, फिर अर्जुना पेनिट्रेट करते हैं फाइनल नीडल के अंदर से। और फिर फाइनली जब वहां से पहुंचते हैं, और इधर बहुत कुछ होता है, और ये इसमें बहुत सारा स्टोरी है। जब अर्जुना जाते रहते हैं ना, तो उसमें युधिष्ठिर को चिंता होती है कि ये यहाँ पे अभी क्या होगा, मतलब ये लोग आए नहीं वापस, और वो लोग सही से तो है कि नहीं, क्योंकि अर्जुना गए। तो सात्यकी और धृष्टद्युम्न, सात्यकी अर्जुन का डिसाइपल है, उसको इंटरेस्ट क्या रहता है कि तुमको युधिष्ठिर को प्रोटेक्ट करना है। बिफोर ही वेंट टू रीच आउट जयद्रथ, उसको बोल के कह रहे थे, धृष्टद्युम्न इज अ कमांडर चीफ, ये दोनों को बोल के रहते हो। युधिष्ठिर महाराज सात्यकी को भेजते हैं कि तू आगे जाके देख भाई ये कहाँ है, ये लोग का क्या हुआ। तो सात्यकी आगे जाता है, फिर से उसको कौन मिलता है, द्रोणाचार्य मालते हैं, द्रोणाचार्य के साथ फाइटिंग करता है। तो द्रोणाचार्य जो सात्यकी है, विच इज डिसाइपल ऑफ अर्जुन, ही ब्रोक द बो ऑफ द्रोणाचार्य। तो बोलते अरे ये तो मेरे डिसाइपल का डिसाइपल है। एंड द्रोणाचार्य बिकम वेरी इंप्रेस, दोबारा लेते हैं, दोबारा भी वो ब्रेक कर देते हैं, फिर तीसरा भी ब्रेक कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, स्मार्टली द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के साइड से निकल के पीछे चले जाते हैं। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये थोड़ी हस्तिना। बोलता है आई एम डिसाइपल ऑफ अर्जुना, आई नीड टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ माय गुरु। तो वो जैसे गए रहते हैं वो भी चले जाते हैं आगे। तो फिर ये थोड़ी देर तक सात्यकी भी नहीं आता है, सात्यकी भी फाइटिंग करता है। फिर यहाँ से भीम को भेजते हैं युधिष्ठिर महाराज, बोलते हैं भीम अगर तुम मैं चला जाऊंगा तो तुमको कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो वहां से वो फिर उसको भेजते हैं, तो वो भी जाता है कौरवों से लड़ते हुए। फिर वो द्रोणाचार्य के पास आता है, द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अर्जुना टुक योर परमिशन टू गो अहेड, बट आई विल नॉट टेक परमिशन, आई एम नॉट दैट ओबीडियंट।
वो गदा फेंकता है द्रोणाचार्य के ऊपर, द्रोणाचार्य राइट टाइम पे जो है वो रथ से कूद जाते हैं और वो पूरा रथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर भीम उसके आगे जाते हैं। फिर देन दे सॉ कि अर्जुना मिल गए, कृष्णा भी मिल गए और फिर बाद में वहां पे कॉन्सेल ब्लो करते हैं और सात्यकी वहीं रुक जाते हैं उनके हेल्प करने के लिए और भीम वापस आते हैं। और भीम वापस आते हैं तो कर्ण से युद्ध होता है और कर्ण से युद्ध होता है तो कर्ण को भी वो पटक देते हैं और फिर कर्ण को बोलते हैं कि आई विल नॉट किल यू बिकॉज टू किल यू अर्जुन हैज टेकन अ वाव, तो आई विल नॉट किल यू यहाँ पे होते हैं। फिर वो वापस आ जाते हैं और वहां पर जो सात्यकी रहते हैं उसका भविष्य से युद्ध होता है और भविष्य से युद्ध होते हुए वहां पे उसके साथ फाइटिंग होता है और फिर उसको बेहोश कर देता है सात्यकी को। अभी कृष्णा बोलते हैं कि अभी तेरे सात्यकी जो डिसाइपल है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अर्जुन बीच में आते हैं और भविष्य उससे आंख को काट देते हैं और फिर आंख को काट देते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। तब अर्जुन उसको बुलाते हैं कि जब तुम सब मिलकर अभिमन्यु को जब मार रहे थे तब तुमको नीति याद नहीं आया और फिर वो टाइम पे उसको रियलाइज होता है कि हमारा मिस्टेक था। तो देन ही सेड द मेडिटेशन बोथ और उसमें फिर सात्यकी की गलती करते आते हो क्या कि उसमें आता है और वो तलवार लेके युधिष्ठिर को मार देते। तो फिर उसको भी कंडेम करते हैं कि मतलब ये नहीं करना चाहिए था, ये एनीवन इज योगी पुत्रा योगी को यू कैन नॉट किल। तो यहाँ पे चले जाते हैं और फिर फाइनली पहुंचते हैं। और इसके पहले वो क्या होता है, अभी कृष्ण का है बट अनदर ब्यूटीफुल पॉइंट कि कृष्ण कैसा है, जैसे जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग जो है वो भौतिक रस में मतलब मटेरियल पीपल दे आर ऑलवेज बिहाइंड दी मनी पावर पोजीशन। यू सी एनिमल्स लाइफ they are always eager to accumulate throughout the life, but what Krishna does, Krishna in the form of a time or a death takes away everything in a चुटकी। आपने जो वर्षों थे तो भगवान को क्या है, कृष्णा लाइक टू टीज, भगवान को बहुत आनंद आता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अभी ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, थोड़े से पास में ही है, पहुंच जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान इल्यूजन क्रिएट करते हैं। इल्यूजन ऐसा क्रिएट करते हैं कि जैसे सूर्यास्त हो गया है, भगवान ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो कौरव सेना नाचने लगती है, बोलते अरे हो गया अभी तो खत्म, अभी सूर्यास्त हो गया, अभी अर्जुन नाउ विल एंटर इनटू द फायर, अर्जुन विल कमिट सुसाइड, ऐसे सब नाचने जाते, बहुत जोश होने लगता है। तो भगवान भी आनंद लेते हैं, अर्जुन भी आनंद लेते हैं, सब इतने खुश हो जाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस होता है और पूरा गेम पलटी हो जाती है। तो ऐसे 82 में भारत और पाकिस्तान का हॉकी मैच हुआ था। मैं तो नहीं था पर मैंने सुना है कि वो हॉकी मैच में भारत ने 2 गोल मारे थे और पाकिस्तान का एक भी नहीं हुआ था और फर्स्ट हाफ के पहले। और सब जितने भी पंजाबी थे ना, सब हॉकी के टाइम पे, धनंजय ओथ के टाइम पे सब लोग नाचने लगे कि अरे तो इंडिया जीत गया। फिर वो सेकंड हाफ का वो पॉज होता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, पता नहीं उन्होंने क्या किया, अल्लाह से प्रार्थना किया, क्या किया पता नहीं। वो जैसे ही आते हैं, यू विल नॉट बिलीव, पाकिस्तान 8 इंडिया 2, इंडिया हार जाता है, बाहर हार जाता है। वो कैसे हुआ क्या पता नहीं, बट लास्ट मोमेंट पे होता है ना कि सी वन साइडेड मैच, अगर टेस्ट मैच देखोगे ना तो वन साइडेड हो जाता है, आपको पता है ड्रॉ जाने वाला है, तो उतना मैच में आनंद नहीं आएगा। अब एक बॉल में 6 रन चाहिए तो कुछ बनता है ना, मतलब क्यूरियोसिटी जगता है क्या होगा। कृष्णा इज आल्सो लाइक दैट, कृष्णा वांट टू क्रिएट दैट एम्बियंस, दैट एनवायरनमेंट। तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान को इल्यूजन क्रिएट करते हैं और सबको खुश कर देते हैं, सब खुश हो जाते हैं। फिर कृष्णा बोलते हैं नाउ इट इज इनफ, बहुत मजा कर लिया अर्जुन ने, अभी बताते हैं, अभी वो इल्यूजन को वापस ले लेते हैं। तो सूर्य को वापस से देखते हैं और जब वो देखते हैं तो सबसे ज्यादा फटती है जगह, वो भी नाचने लगा रहता है कि अभी तो मैं बच गया जी। उसका जो हृदय में आपको संतुष्टि मिलता है ना, उसका अनुभव आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो हम उस परंपरा में हैं जहाँ पे हमारे गुरु, ये जो परंपरा है वो भगवान कृष्ण से शुरू हुई है और उसी में अंतरराष्ट्रीय ब्रह्म संघ के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की और वेयर दे आर ट्राइंग टू learn how to serve and how to become a servant. See, many times being a servant we felt like offended. मतलब servant, अभी servant में ये युग में अभी भगवान ने servant सारथी का पोजीशन लिया और वही जो शाल्य जो था ना, शाल्य को भी जब कमांडर इन चीफ कर्ण को बनाया तो उसने बोला शाल्य को आप सारथी बनाओ, but he didn't agree. It is below my dignity to become a सारथी. अब आप look at the comparison. Krishna being a supreme personality of Godhead, he becomes सारथी of the devotee and सारथी शाल्य is not ready to become सारथी। तो भगवान का बस यही है, हम जिस प्रकार से भगवान को भजते हैं, जिस प्रकार से भगवान के शरण में जाते हैं, जैसा हमारा भगवान के प्रति रेसिप्रोकेशन होगा, भगवान भी उसी प्रकार से रेसिप्रोकेशन होगा। तो मैं बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हमने जो ये पूरा एपिसोड बताने का, ऐसा बहुत कुछ हुआ है, पर ये पूरा एपिसोड बताने का तात्पर्य यही था कि कैसे भगवान अपने भक्तों के सेवक हैं। एंड नाउ दिस इज द सब्जेक्ट दैट वी हैव सिलेक्टेड,
yes, God can be a servant of His intimate devotee, and being an intimate servant, He is simultaneously God also. Then we can see the miracle how without any weapon, how we are. मतलब 5 निष्कासित बच्चों को, पांडव 5 निष्कासित बच्चों को पूरे भूमंडल का राजा बना दिया बिना किसी शस्त्र के. ये ड्यूटी है कृष्ण का. So thank you so much for being very wonderful and patient audience and giving me the opportunity to serve in a little way. Sorry if I have taken a little long, but this was a theme that I wanted to narrate, and so that we can remember that we need to become a servant and genuine desire to serve. Then only the real happiness that we all are looking for in every different parts of the life that we can experience. The joy of serving. Thank you. Hare Krishna. Yes, Prabhu. I just want to add one comment here. Like you mentioned कि भगवान सबसे ज़्यादा टॉलरेट करते हैं. Yes. कहीं भी जाए, कितनी भी होने पे जाए, भगवान हमें छोड़ते नहीं है, भूलते नहीं. तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर हमें आज के टाइम में अगर देखना है, तो हम सब लोग मोबाइल में गूगल मैप यूज करते हैं. तो एज वी नो कि हमने गूगल में अगर एक डेस्टिनेशन डाल दिया, तो इवन अगर हम लोग बोरीवली से बहुत चर्चगेट जा रहे हैं, अगर चर्चगेट की जगह हम पुणे चले गए या नासिक चले गए, बट दैट गूगल मैप विल कीप रीराउटिंग अस बैक. Beautiful point. Yes. So that's how Krishna is always looking for you to turn towards Him. मतलब हम बहिर्मुख है, वो हमारे हृदय में बैठे हैं और वो ये देख रहे हैं कि कब हम सन्मुख हो जाए. मतलब we just have to turn. भगवान की तरफ देख लिया फिर बेड़ा पार है. Thank you. Hare. So thank you, Jigar Prabhu, for taking us back to Kurukshetra, Mahabharata, B.R. Chopra. B.R. Chopra is nothing in front of you. In fact, the whole series which we saw in television with so many artists, so many music directors, so much of direction behind, but we were actually visualizing all with your speech, everything in front of us, and I'm sure everyone loved it. Thank you so much for your preparation. I'm sure remembering this whole minute details of this war pastime was a huge task. In fact, so many names, so many minute details, who killed whom, how he killed, how he fought. So great effort, Prabhuji. Thank you so much for taking us. Thank you, Prabhu. As I said that now I can very confidently, because of your comment and feedback, I confidently go back to my teacher and I said that I'll justify the service that you have given to me. It is all because of Rajbihari Gurundas and Prabhu. I will definitely report and pass on all your comment, all your appreciation to them. Thank you so much. We can have short Narsimharti and I think in the interest of time, Mahaprasad. take Prashad. Okay.